स्वागत है आपका हमारे एक और नए एपिसोड में इस पॉडकास्ट के एंड टुडे वी हैव विद अस पार्थ सानी ही इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हु हैज डन हिज एमएस फ्रॉम अपस्टेट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ही is very you could say curious or very enthusiastic about AI technology and especially for infrastructure. So even he has developed some concepts Yes. that help in dealing with our infrastructure issues जो हमारे डे टू डे लाइफ में तो हमें देखने को मिलते ही है, बट फॉर लॉन्ग टर्म थिंकिंग इट इज़ वेरी Hmm. इंपॉर्टेंट कि वो Hmm. इम्प्लीमेंट देश में होना चाहिए। तो पार्क के साथ में आज जो हम बातें करेंगे दैट विल नॉट जस्ट बी अबाउट एआई बट ऑल्सो इट्स इम्प्लीमेंटेशन, हाउ इट फंक्शंस डिफरेंटली फॉर इंडिया एंड मेनी मोर थिंग्स। सो पार्थ, वेलकम to our podcast. And I want to start this. Obviously, I would like you to also introduce a bit more about yourself to our audiences. But मेरे को पहले ये बात बताओ आप कि AI जो है, it has become like a word that everybody is putting anywhere now, Correct. right? तो infra में भी हम लगा रहे हैं। Correct. I want you to explain how do, like, it's hard and soft. Yes. How do this Yes. correlate? So I think when we perceive AI, we think that AI is something which is software. हाँ, We don't think about AI that it could be something that is related to software, but for hardware in real world. हम्म, Meaning, there is lot of things that are present in the real world which run actual software, and uh, it depends on the reliable working of that software in order to make services work. Like traffic lights are there. There are many other railway crossing there. There is so many other infrastructure like Kavach is there popularly, which हम्म, is one of the things which is a big complicated system, software system meant for protection of our public safety and security by making sure that we don't have collisions and other हम्म, things like that, which is important. हम्म, So if we can envision that there can be infrastructure which is roads, trains, traffic signs, and so many other things, can we envision that there can be AI for those particular services which are existing on the road, but that is AI for India, because हम्म, rest of the world, India देखो कैसा AI पूरा अलग है इन द वर्ल्ड, हाउ इज डिजाइन, कि इंडिया के लिए वो AI लोकलाइज नहीं है. इट इज नॉट हम्म, लोकलाइज टू द पॉइंट वेयर आई कैन जस्ट से कि अमेरिका से मैंने AI मॉडल उठा लिया डाउनलोड मार के, हम्म, तो दैट will not work exactly 1:1 the same in, let's say, Pune, where I am from, हम्म, or it could not work directly exactly the same way if it works हम्म, in Mumbai, because India is different. India राइट, is a unique place. हम्म, So I think one of the great things about India is that it's a very big unexplored opportunity for हम्म, whoever wants to work in the field of AI and wants to create infra for AI. हम्म, That is Indian infra for AI, uh, and then made by Indians in India. हम्म। That is the big thing. जब आप बात कर रहे थे ना, द क्वेश्चन दैट कीप्स कमिंग अप इन माय माइंड इज दैट जितना मेरा नॉलेज इन चीज़ों के बारे में, हार्डवेयर बेसिकली गिव्स यू द डेटा, द पैरामीटर्स, और फिर वो जो प्रोसेस होता है दैट्स द एक्चुअल एआई। Hmm. बट व्हाट यू आर सेइंग इज दैट कि एट हार्डवेयर लेवल वी कैन प्रोग्राम एआई, कि जो वो बाद में अपना आउटपुट देगा भी, Hmm. दैट विल बी काइंड ऑफ रिफाइंड Yes, it will यूजिंग be एआई। modulated. हाँ, हाँ। Let's say if you have Mumbai Pune Expressway is a popular example of this. Okay, हम्म, so when somebody is exceeding the speed limit, they are having traffic violations. हम्म, They get the each challan, right? करेक्ट। So nobody sitting there individually, हाँ, going ahead इशूइंग and चलान। issuing challans. They can do it, but हम्म, I'm sure that they are not doing it day by day. It is हम्म, very boring job. हम्म, I don't think anybody is interested in sitting and looking at the TV हम्म, screen and then issuing challans manually हम्म, day by day. So from that purpose, if you think about it, we already have this basic kind of thing which government has implemented today, हम्म, where the system applies the challan to the vehicle हम्म, as per the inputs it sees from the hardware, हम्म, and then it uses its uh, quote unquote AI or any kind of smart rules हम्म, that it is following. Let's say somebody exceeds speed limit, somebody is doing lane cutting or हम्म। something like that. If it detects it, so that's how it goes ahead and issues it. So that's existing today. पारजी, एक मेरे को लाइक द कंफ्यूजन दैट आई की लाइक कीप हैविंग इन माय माइंड। अब हम थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे इवन ऑन कॉल व्हेन वी वर टॉकिंग, हम एग्जांपल ले रहे थे सेल्फ ड्राइविंग कार्स का Hmm. वगैरह। माय क्वेश्चन ओवर हियर इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रांसपोर्टेशन और रोड इन ये यूएस में या यूरोप में ना,
कभी कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है तो वन बिग फैक्टर दैट दे कीप इन देयर माइंड इज़ कि यहाँ पे सब स्टैंडर्डाइज्ड है। Hmm. यू नो द रोड्स विल बी बिल्ट इन सच अ वे, द मार्किंग्स विल मीन समथिंग, द Hmm. साइन बोर्ड्स विल मीन समथिंग एवरीवेयर। लेकिन हमारे देश में जब हम And people हार्डवेयर, will follow it. हाँ, एंड पीपल विल फॉलो इट ऑब्वियसली दैट्स अ बिगर लेयर ऑन टॉप। लेकिन अपने देश में क्या है ना, पहली बात तो कंस्ट्रक्शन लेवल से ही स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। आई थिंक इवन द कॉन्ट्रैक्टर्स डोंट नो कि एक डैश लाइन का मतलब क्या है, या डबल येलो लाइन का मतलब क्या है, या सिंगल व्हाइट लाइन का हाँ, मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट में है तो बना दिया। हाँ, बना दिया और अपने मन से बना दिया, गॉड हाँ, नोज़। हाँ, हाँ। अब जब ये चीज़ें नहीं है, ओके एक्सप्रेसवे इज़ वेरी स्टैंडर्डाइज्ड, मुंबई-पुणे इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स। बट जब ये चीज़ें नहीं है, हाउ विल द एआई दैट विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस बी डिफरेंट इन इंडिया? So one of the very interesting things is about how one can handle this kind of complicated situation, because हुँ, in AI there is some concept of chaos agents, or हुँ, how uh, a system can handle chaos. हुँ, Chaos meaning any random event, like हुँ, you said कि मैं रास्ते पे एक्सप्रेस वे में गाड़ी चला रहा हूँ एंड रॉन्ग साइड से टू व्हीलर आ रहा है. हुँ, Now that is a very deadly situation for the biker also, हुँ, but for me also, because येस, so many things can happen करेक्ट, because of, or like if accident happens. But what to do in that kind of situation? So हुँ, this is one classic example of this is chaos and how to deal with this situation. So can the car do some kind of avoidance procedure? हुँ, हुँ, Can it be done that it is possible for us to avoid this kind of accident? Is it such that there is no reason for the car to panic, because हुँ, maybe I'm driving in the overtaking lane हुँ, while that person is driving on the side of the road near the truck lane. So हुँ, there is no need for this. येस, So there are different situations where you can avoid this. Say हुँ, there may be a situation where, let's say, now there is a missing link project due to येस, which is being constructed, right? So there is a lot of construction happening in that area where this diversion is there. हुँ, There is some other places where, let's say, actually speed limit should be 100, हुँ, हुँ, but nobody can follow the speed limit of the 100 because there is diversion, and then there is हुँ, slow down, traffic jam happens in the हुँ, ghat sometimes. So how to deal with that situation? Can we हुँ, consider that car can slow down, car can adapt to that situation in the moment? हुँ, क्या वो हैंडल कर सकता है उसके ऊपर? एकदम से बारिश चालू हो गया, हुँ, मुंबई ऑल दिस एरियाज बहुत येस, ज़्यादा बारिश होता है, करेक्ट, बहुत ज़्यादा घाट में ट्रैफिक जैम हो सकता है, वाटर लॉगिंग हो सकता है। तो इन ऐसा डायनामिक सिचुएशन में हुँ, कैन कार स्टिल ड्राइव, और इट विल से नहीं, ह्यूमन यू टेक इट? हुँ, वो कहाँ सो हैंडओवर करना है? कहाँ कहाँ हैंड ओवर करना है? सो हुँ, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन डिपेंड्स ऑन हाउ रोबस्ट योर एआई इज, हुँ, बट you can make it more robust as हुँ, an individual. I would say that when you're driving, the car manufacturer will be able हुँ, to हुँ, take data from the car. This हुँ, is what हुँ, Tesla does येस, with their self-driving beta program that they have. हुँ, हुँ, Let's say in the United States they have that. हुँ, हुँ, वो ऐसा करते हैं कि जो कार होता है उसमें काफी सारे कैमरास होते हैं, करेक्ट, तो वहां से कैमरा से डेटा उनके सर्वर में जाता है हुँ, हुँ, यूजिंग सेल्युलर कनेक्शन, जो डेटा कनेक्शन रहता है, हुँ, हुँ, 4G 5G कनेक्शन, उसी से इट गोes अब्रॉड, हुँ, मतलब अब्रॉड टू वेरेवर व्हाटएवर सर्वर इज़ देयर। server is there. So it goes there, and then they have huge AI training data centers, जिससे वो लोग पूरा उनका AI मॉडल ट्रेन करते हैं. हुँ, When we are talking about AI, what is AI? AI is a AI model. हुँ, So coming back to your question हुँ, just specifically, हुँ, हुँ, कि how will it handle uncertainties? हुँ, So uncertainty handle करने के लिए let's think about कि how human handles हुँ, हुँ, uncertainty. अभी फर्स्ट टाइम जब भी आप कभी आपने गाड़ी चलाया होगा, तो यू माइट बी लाइक कि अरे एकदम से सामने से कोई आ गया, तो हुँ, आपने कैसे हैंडल किया होगा? हुँ, मतलब राइट। इट माइट बी पैनिक ब्रेकिंग पैनिक और पैनिक या ब्रेकिंग, फिर साइड में एकदम घुमा दिया गाड़ी। हाँ, कुछ येस, कुछ हो जाता है ऐसा कि राइट, ह्यूमन ऑल्सो विल रिएक्शन गेट करना पैनिक, पड़ता है, कि येस। फर्स्ट टाइम अगर ह्यूमन चला रहा है तो वो हुँ, भी पैनिक हो जाएगा करेक्ट, इफ ही इज नॉट ड्रिवन. हुँ, एंड अगर आपका क्या यूज्ड बोलते टू है। हैं, यूज टू है, या फिर इवन इवन एक एडिशनल पैरामीटर आपने डाल दिया कि आपको कौन से गियर में रहना है, हाँ, हाँ, तो मतलब इंडिया में मैनुअल कार्स काफी है, तो करेक्ट, मैनुअल कार के हिसाब से यू विल सी अरे कौन सा गियर में है, हुँ, तो दैट इज वन एडिशनल पैरामीटर कि मुझे ब्रेक करना है, क्लच हुँ, हुँ, करना है, सो मेनी थिंग्स आर देयर. करेक्ट, सो ह्यूमन ने भी एक टाइम में सीखा है, हुँ, उसको सीखने में टाइम लगता है, हुँ, तो एआई को भी सीखने को बहुत टाइम लगता है, हुँ, एंड लिटिल बिट आई वुड से कि ज्यादा एग्जाम्पल लगता है. हुँ, एआई लर्न्स बाय एग्जाम्पल. तो करेक्ट,
उसे ना एआई का फील्ड में वी कॉल इट रीइंफोर्समेंट लर्निंग, हुँ, कि अगर एआई जैसे पॉजिटिव कुछ काम करता हुँ, है कि इफ इट्स एबल टू ड्राइव फ्रॉम लेट्स से गेटवे ऑफ इंडिया टू लाइक माय हाउस इन पुणे, मे बी इट हुँ, कैन ड्राइव ऑल द वे, इतना बड़ा रास्ता कर हुँ, सकता है वो, तो इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज अकम्पलिशमेंट। हुँ, बट ये जब पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रहा है तो उसको जब टर्न लेना है, उसको वेट करना है सिग्नल पे, तो दीज आर ऑल पॉजिटिव एक्शंस दैट द एआई शुड फॉलो व्हेन सर्टेन इनपुट हैपेंस। हुँ, तो व्हेन इट फॉलोज, हुँ, जब आप उसको मॉडल को ट्रेन करोगे, मॉडल मीनिंग एआई को ट्रेन करोगे, तो वो क्या करता है कि इट गिव्स इट पॉजिटिव एसोसिएशन कि हाँ हुँ, गुड बॉय, आपने अच्छा काम किया, हुँ, हुँ, एआई यू आर डूइंग वेल। and then अब it goes into the loop गोज again. गोज इनटू Yeah, लूप अगेन कि ओके व्हाट इज द नेक्स्ट इनपुट, input. व्हाट इज द नेक्स्ट इनपुट। तो ऐसे करके आप यू कैन गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। जैसे दे विल बी 1 मिलियन 2 मिलियन, मतलब 10 लाख 20 लाख इनपुट से हो सकता है पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो ये इमेज के ऊपर वी गेट द इनपुट। मोस्ट लाइकली टेस्ला कार्स फॉर एग्जांपल आर रनिंग ऑन इमेज इनपुट। इंडिया में देयर इज अदर एडास टेक्नोलॉजी, महिंद्रा एंड अदर्स हैव एडास टेक्नोलॉजी इन देयर पर्टिकुलर व्हीकल्स, एंड दे आर ऑपरेटिंग इन अ सिमिलर वे। अभी लेवल ऑफ ऑटोनॉमी कार के हिसाब से इज डिफरेंट, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 वो सब अलग है। तो ये प्रॉब्लम क्या है एट द एंड ऑफ द डे, लाइक यू सेड कि ये जो ट्रैफिक साइंस है सब स्टैंडर्डाइज नहीं है, हुँ, और वर्ल्ड से बहुत अलग है। हाँ, मतलब ट्रैफिक साइंस अलग ही दिखते हैं टोटली, even district to district it will change. टोटली हाँ, चेंज होता है। मतलब मे बी जैसे महाराष्ट्र में ट्रैफिक साइन होगा सेम दिल्ली में नहीं होगा। right, मे बी एक्सप्रेस हाईवे होगा बिकॉज वो स्टैंडर्डाइज थोड़ा standardized है। बहुत, बट जो स्टेट हाईवे पे होगा इट माइट बी लुकिंग डिफरेंट। हुँ, तो हर उसका पिक्चर अलग है। बट क्या हमारे पास ऐसा कोई डेटाबेस है फॉर इंडिया, बाय इंडियंस, फॉर एआई, हुँ, फॉर इंडियन एआई, हुँ, ऐसा कुछ है क्या? तो मेरा कॉन्सेप्ट जो मैं लेकर आया हूँ, विच एनीबडी कैन गो एक्सेस एंड डाउनलोड, मैंने फ्री बनाया सबके लिए कि आप हुँ, जाके बनाओ। कोई भी आपका पसंदीदा मॉडल हो। इसमें प्रॉब्लम है आपको कि आपको डेटा कलेक्शन करना है, हुँ, इमेजेस का कलेक्शन करना है यूजिंग कैमरा, हुँ, ताकि यू कैन गो एंड क्रिएट एग्जांपल्स ऑफ दोज ओके, फोटोज, सिचुएशंस हाँ, सिचुएशंस कि अगर ट्रैफिक सिग्नल इंडिया में कैसा दिखता है, रेड ग्रीन लाइट कैसा दिखता है, हुँ, अगर 100 का स्पीड लिमिट है तो वो कैसा दिखता है। हुँ, 100 का स्पीड लिमिट ऑन लेट्स से समृद्धि महामार्ग विल लुक स्लाइटली डिफरेंट एज कंपेयर टू मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। हुँ, साइन का भी कलर अलग हो सकता है टोटली, इट कैन बी ग्रीन, इट कैन बी ब्लू, हुँ, डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। यस, तो आरटीओ का जो वेबसाइट पे पीडीएफ है, उस पे आप कोई भी ह्यूमन ड्राइवर्स भी देख सकते हो कि हुँ, क्या अलग अलग टाइप का ट्रैफिक साइंस होता है। हुँ, बट इन प्रैक्टिस रियल वर्ल्ड में बहुत अलग दिखते हैं लोग। यस, तो ये जो हुँ, गैप ब्रिज करना है उसके लिए वी नीड लॉट ऑफ डेटा, a lot of data which is AI for India, हुँ, localized for India। तभी हुँ, ये सेल्फ ड्राइविंग या फिर ऑटोनॉमी के बारे में हो सकता है। तो दिस इज द हार्डवेयर एस्पेक्ट ऑफ हैविंग एआई फॉर इंफ्रा इन हुँ, इंडिया, बट विथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन माइंड। हुँ। I have this doubt. जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ला हैज देयर ओन सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम दे हैव मेड, ठीक है, कुछ और कंपनीज आई थिंक जीएमसी शेवले ने भी अपने अपना कुछ ना प्राइमरी लेवल ही क्यों ना हो बट टेक्स बनाया है, एंड देयर बेसिकली अ डिफरेंट मॉडल माइट रिएक्ट इन अ बिट ऑफ डिफरेंट वे। अभी इंडिया में इतने मैन्युफैक्चरर्स है अपना अपना डेवलप कर रहे हैं, महिंद्रा जैसे आपने कहा दे रहे, टाटा दे रहा है, बट इन इंडिया जब हम सड़क पे निकल रहे हैं, एज वी आर टॉकिंग की स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, इसके लिए रिएक्शन भी कभी स्टैंडर्ड नहीं होगा, करेक्ट। राइट? सो इज इट नेसेसरी कि इंडिया में अगर चीज़ों को फास्ट करना है एंड सक्सेसफुल करना है, इट वुड बी नेसेसरी फॉर ऑल द डिफरेंट प्लेयर्स इन द मार्केट टू कम टुगेदर, डेवलप अ कॉमन डेटा पूल, और फिर सब मिलके उसमें से कोई कॉमन मॉडल बना के, लाइक फॉर एग्जांपल हाउ एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो स्टैंडर्ड हर गाड़ी में सेम होता है, बस स्क्रीन थोड़ी बहुत अलग दिखती है, राइट? सो कैन दिस हैपन इन इंडिया फर्स्टली विद डिफरेंट प्लेयर्स? शुड इट हैपन, सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड, इज इट बेनिफिशियल और इट्स बेटर कि बाकी लोग अपना अपना ही डेवलप करें, फिर जो बेस्ट होगा वो अपने आप ऊपर आएगा? Okay, so to answer your first question, yes, हम्म, it can happen. हम्म, My example I'm giving is so that people understand how it can be done. Like, because I don't think the common Indian understands, आम आदमी नहीं समझ पाता है या फिर आम हम्म, इंजीनियर भी नहीं समझ पाता है हम्म, कि एआई कैसे बनाए या फिर स्टार्ट कहाँ से करे। हम्म,
मतलब तो वो अगर स्टार्ट करना है, वी वांट टू स्टार्ट इट, वी वांट टू मेक श्योर कि दैट इज पॉसिबल, तो देन देयर इज सम स्टार्टिंग पॉइंट, सो देन द कॉन्सेप्ट आई पुट गिव्स द बिगिनिंग और सीड टू दैट आइडिया कि वी कैन डू इट. हम्म. And then the second part to your question, where you're saying ki whether they are doing it, Manufacturers, yes. whether they are doing it. So I think they are doing it, but they are not disclosing it Hmm. publicly that they are doing it. In the Hmm. sense that उनका जो सॉफ्टवेयर रहता है, तो दे विल Hmm. हैव एंड यूजर लाइसेंस अग्रीमेंट होता है. Correct. Hmm. यू नो, मे बी 100 पेजेस का तो Easily होगा, इजीली हाँ. होगा वो एंड यूजर लाइसेंस Hmm. अग्रीमेंट. कितना मैंने पता नहीं, वेरी Nobody reads it. नो बड़ी रीड्स इट. अग्री दबा के वी मूव आगे, ऑन. हाँ. तो अगर वो अग्नि दबा के वी आर मूविंग ऑन एंड सब चल रहा है वैसे ही, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इन माय माइंड कि कहीं ना कहीं लैंग्वेज बरीड तो होगा कि Hmm. उसमें 4G मॉडेम होता है गाड़ी में, कि यू कैन Hmm. टर्न ऑन, स्मार्ट कार होता है तो Hmm. एसी चालू कर सकते हैं, सब कर सकते हैं. तो मतलब इफ इट हैज अ डाउनलिंक अपलिंक भी है ना, Hmm. Correct. जहाँ से वी कैन सेंड अपलोड भी इंफॉर्मेशन होगा. बैक. तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मैन्युफैक्चरर्स है ये शायद ऐसा कर रहे हैं, कोलैबोरेट करके. कोलैबोरेट भी नहीं, हम्म. एवरी मैन्युफैक्चरर अपना प्रोप्राइटरी डेटा कलेक्शन बना कर रहे रहा है, हैं. यस. बट इट्स नॉट दैट इट इज डिस्क्लोज्ड, हम्म. क्योंकि देयर इज नो रीजन टू डिस्क्लोज. आई थिंक दैट इज वेरी ऑब्वियस कि मतलब आई थिंक इवन बिफोर सेल्फ ड्राइविंग डेटा कलेक्शन वाज एज सून एज द कार बिकेम कनेक्टेड, हाँ, तब से डेटा तो हर कोई लेता है. हाँ, हाँ. एंड आई थिंक इन सेल्फ ड्राइविंग का दुनिया में ना कि हम्म. वो ज़्यादा एक्सप्लिसिट होगा तो इट इज़ डेफिनेटली ऑलवेज बेटर, बिकॉज हम्म. यू नो, समझ लो इफ यू आर ड्राइविंग टू कार इन हॉस्पिटल एरिया, सेंसिटिव एरिया है, हम्म. तो अगर आपको पता नहीं है आप कहाँ जाके वो कर रहे हो, जैसे एआई के बारे में ना बहुत इंडिया में कंसर्न्स भी है कि प्राइवेसी है, ऑल हाँ. दिस थिंग्स है, बट क्या है कि इसमें गवर्नमेंट का भी मेरा हिसाब से थोड़ा फॉल्ट है, हम्म. बिकॉज जो उन्होंने डेटा प्रोटेक्शन बिल पास किया है, हम्म. दे हैव नॉट नोटिफाइड द रूल्स अभी तक. दे आर सेइंग कि ईयर के एंड तक करेंगे, अगले साल करेंगे, यस. पता नहीं कब करेंगे, बट यू नो जो गवर्नमेंट का ये पार्ट है, दे हैव नॉट डन इट येट. हम्म. कि अगर समझो मुझे रूल फॉलो करना है, रूल हम्म. तो बनाओ पहले फॉलो करने के लिए, हम्म. तब तो मैं जानूं करेक्ट. कि क्या रूल है. यस. तो अभी रूल ही नहीं है, तो यू हम्म. यू कैन से कि तो ऑफ ग्रे कोर्स एरिया है पूरा. ग्रे एरिया है, हम्म. इन द सेंस कि इंडिविजुअल मानता है पब्लिक एरिया है, लीगल है रिकॉर्ड करने को, हम्म. तो इट इज फाइन. हम्म. मतलब अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर भी जो राइट टू प्राइवेसी है, इट इज फंडामेंटल राइट, जितना मेरा हम्म. अंडरस्टैंडिंग है, इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल हम्म. राइट्स विच इज देयर. मे बी आई एम रॉन्ग, बट हम्म. आई थिंक है. तो to that extent, when you are in public, I don't think there is any expectation of privacy. तो आई थिंक द मैन्युफैक्चरर्स आर गोइंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि वो वैसे ही उसका डेटा कलेक्शन वैसे करेंगे फॉर मेकिंग एआई फॉर इंडिया. तो हम्म. अगर कोई गाड़ी चला रहा है हम्म. ऑन द हाईवे लेट से, तो डेटा हम्म. रिकॉर्ड हो रहा है एंड वो जा रहा है. हम्म. देयर इज नो कंसेंट, नथिंग हम्म. फ्रॉम अ ओवरऑल पर्सपेक्टिव. ये मेरा मानना है. अभी कितना सही है मुझे पता नहीं, बट आई एम श्योर कि ये कहीं ना कोई कर रहा है, हम्म. जिससे दे आर एबल टू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन हम्म. एंड वो अंदर अपना प्रोप्राइटरी मॉडल बना दे. बिकॉज आप यस. देखोगे जो महिंद्रा एंड ऑल दिस अदर कंपनीज वो हम्म. एडास टेक्नोलॉजी तो बना रहे, हम्म. बट उनका डेटा क्या है, मतलब कौन से बेसिस पे वो लोग एडास यस. बना रहे. कोई तो डेटा डेटा कलेक्शन हो होगा रहा ही है. होगा. मतलब लेट्स से कि अगर पब्लिक से नहीं हो रहा है, तो अपना खुद का टेस्ट गाड़ी चला के वो शायद कलेक्ट कर रहे होंगे. इट कुड बी कि वो ऑलरेडी कर रहे हैं, राइट. बट ये कॉन्सेप्ट पब्लिक इतना नहीं आया. है नहीं है, मुझे लगता है अवेयरनेस भी नहीं है लोगों यस. में. तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम हाईलाइट करें. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि क्या वो कर रहे हैं. तो इन द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आई वुड से कि क्या वो करना चाहिए, कैन दे कोलैबोरेट, ऐसा लाइक मेरा ऐसा मानना है कि अगर वी कोलैबोरेट थिंग्स विल बी फास्टर, यस, बट द प्रॉब्लम इज कि टेक्निकली स्पीकिंग इट विल नॉट बी लाइक feasible always, because अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरर ए से का जो गाड़ी होगा विल बी लुकिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर बी का एंड देन सी का. गाड़ी का शेप भी अलग है, गाड़ी का जो हार्डवेयर होगा, कैमरा होगा, वो भी अलग होगा, उसका स्पेसिफिकेशन अलग होगा. कॉस्ट प्राइस के हिसाब से भी लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज. कि हाउ मच इज द क्वालिटी ऑफ द सेंसर जो उसमें है, क्या वो बहुत ही ज़्यादा एंट्री लेवल सेंसर है, बेसिक सेंसर है. उस लाइक सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का इंडिया में कोई स्टैंडर्ड नहीं है बेसिक. एंड देन सॉफ्टवेयर में ऐसा बोलता है कि व्हेन ऑल एल्स फेल्स स्टैंडर्डाइज. ओके, बिकॉज जैसे यू मेंशन कि एंड्रॉयड ऑटो है, कार प्ले है, तो अगर आप देखेंगे तो इतने 10-15 ईयर्स तक पहले वी यूज टू हैव स्टीरियो सेट, सोनी का हुआ करता था, सीडी है, दबाव अंदर यस. तो निकलता है सब बाहर सीडी वो.
कैसेट होता था। हुँ, तो आप देखोगे तो इट इज़ अ कोलोसल फेलियर इन द मार्केट मेरे हिसाब से, बिकॉज़ अगर आपके पास सीडी है, अगर आपके पास ऑक्स केबल है, तो कुछ लगा हुआ है तब आपका काम चलता है, वो भी लिमिटेड रहता है। यस। द कनेक्टिविटी इंटरफेस बहुत डायरेक्ट नहीं है। हुँ, देन उसके बाद में समबडी इन्वेंटेड ब्लूटूथ का इनपुट इनटू द हुँ, ऑक्स। यस। हम मतलब आई एम श्योर कि ऑडियंस में से बहुत लोगों ने यूज़ भी किया होगा ये, हाँ, कि हम डालते हैं ऑक्स केबल के साथ में ब्लूटूथ हुँ, होता है एंड ऑल दिस वर्क्स। हुँ, तो अगर आप देखोगे ये नीड क्यों आया? हुँ, ये नीड आया बिकॉज़ जो पहले था वो परफेक्ट नहीं था। हुँ, लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। हुँ, तो ये इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस है ना। हुँ, तो हुँ, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस होगा तो देखोगे वील कम टू अ पॉइंट, जैसे आज आए हैं, जैसे इन माय कार, योर कार, वी विल हुँ, हैव एंड्रॉइड ऑटो रहेगा, कारप्ले रहेगा, ऑल दीज फीचर्स आर हुँ, देयर, ड्यू टू व्हिच वी आर सेइंग कि अभी नाउ वी कैन जस्ट प्ले म्यूजिक डायरेक्टली इनटू द साउंड सिस्टम। हुँ, तो वही कॉन्सेप्ट है कि व्हेन इन सॉफ्टवेयर, हुँ, व्हेन हुँ, ऑल एल्स फेल्स, स्टैंडर्डाइज। यस। एंड आई थिंक इन इंडिया मोस्ट ऑफ द बिगर प्रॉब्लम्स दैट वी वर फेसिंग फॉर years एंड years, वो आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन ही सॉल्व हो पाया। फॉर हम्म एग्जांपल इफ हम्म यू टेक पेमेंट्स एंड ऑल, 10-12 साल तक बहुत कंपनीज ने अपना अपना जो स्टैंडर्ड्स है उस पर ट्राई किया वॉलेट्स वगैरह बना के। हम्म बट एंड ऑफ द डे व्हेन बिहाइंड द सीन्स एवरीथिंग गॉट स्टैंडर्डाइज कि बैंक अकाउंट ऐसा होना चाहिए, ऐसे ऐसे उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। एंड आई थिंक दैट वाज द रीजन व्हाई यूपीआई बिकेम सक्सेसफुल। अभी उसके ऊपर लेयर्स अलग अलग है, कंसिडर द मैन्युफैक्चरर्स, बट बिहाइंड द सीन्स द वे दीज एप्स आर फंक्शनिंग इज बेस्ड ऑन अ कोर कॉन्सेप्ट। एक कोर जो बना रखा है गवर्नमेंट ने या मे बी किसी प्राइवेट एंटिटी ने, उसके भरोसे पे चल रहा है। सेम गोज विद कारप्ले एंड दिस ऑल्सो। मैं ये मेरा सवाल क्या है पता है मैन्युफैक्चरर्स को कोलैबोरेट करने का? आई जस्ट डिस्कवर्ड अ फ्यू डेज बैक कि एलएलएम्स कैन हैव पर्सनैलिटीज इफ यू आस्क देम। फॉर करेक्ट। एग्जांपल अगर हम मैं चैट जीपीटी बोलता बच्चे से समझाओ, तो इट विल चेंज द वे इट इज टेलिंग मी। एग्जैक्टली हाँ, और एग्जैक्टली। टीच मी लाइक सम XYZ पर्सन और ये XYZ। तो अगर एलएलएम की पर्सनैलिटी हो सकती है इन इंडिया व्हेन इट कम्स टू व्हीकल्स ना, पीपल एसोसिएटेड पर्सनैलिटीज टू द व्हीकल्स कि एग्जैक्टली। थार वाला है तो बहुत घटिया चलाता होगा, हाँ, क्रेटा वाला है तो या एग्रेसिव हाँ है। एग्रेसिव चला रहा होगा, अगर कोई फैमिली कार वाला है तो ऐसे होगा, अगर अर्टिगा है तो टैक्सी होगी। हाँ, ऐसे कंसेप्ट्स है। एंड ऑल्सो individuals like drive very differently. Like earlier when I started driving, I was a very aggressive driver, मेरे को हर किसी को ओवरटेक करना है। बट ओवर द टाइम आई हैव रियलाइज्ड देयर इज नो सेंस ऑफ इट। हुँ, नाउ आई ड्राइव वेरी कॉशियसली, राइट। राइट? विल लाइक इज दिस अ पॉसिबिलिटी कि डिफरेंट कंपनीज एज वी सेड प्रोप्राइटरी डेवलप करते हैं अगर अपना, तो वी विल बी सीइंग कार्स इन इंडिया that are like driven using AI models, but even those behaviors are different. एब्सोल्यूटली, यू हिट द हे Like नेल ऑन द for हेड। example, एक कार है, वो उसमें सेफ्टी प्रायोरिटी पे इट विल स्टॉप, इट विल मेंटेन अ बिग गैप। बट सम अदर एआई इज प्लान्ड लाइक फुल देसी मोड, ए जहाँ पे वो एकदम टेल गेटिंग एग्ज़ैक्टली, करेगी। एग्ज़ैक्टली विल बिकॉज़ दिस हैपन? एग्ज़ैक्टली मतलब ये होगा ही एंड मतलब वेस्ट में ये हो चुका है। हाँ, इन द सेंस कि यू विल सी कि जैसे एलएलएम, या फिर व्हेन आई से एलएलएम इट मीन्स लाइक चैट जीपीटी, हाँ, ग्रॉक एंड ऑल दीस थिंग्स, तो इनका पर्सनैलिटी है। यस। तो डिपेंडिंग ऑन कि हम्म, वो एआई या जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम, ऑटोनोमस हम्म, सॉफ्टवेयर सिस्टम हम्म, है, तो उसका ऑब्जेक्टिव आपने क्या किया है, कि हम्म, मैक्सिमम सेफ्टी डालना है, हम्म, क्या मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए देना है, हम्म, लाइक मे बी द रिस्क एबिलिटी हाँ, कितना मतलब रखना है उसमें? द मोस्ट एफिशिएंट वे माइट नॉट बी द मोस्ट सेफ वे सेफ आल्सो। है, यस। कि अगर मुझे फास्ट चला के गाड़ी आना है, वो हम्म, एफिशिएंट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू डिफाइन बाय एफिशिएंसी। बट क्या वो सेफ है? इट्स अ क्वेश्चन मार्क ना। यस। कि अगर मैं धीरे आऊँ तो मे बी इट इज नॉट हम्म, एफिशिएंट, कि अगर मैं सारे ट्रैफिक रूल फॉलो करके आऊँ, हम्म, इट मे नॉट बी द मोस्ट एफिशिएंट। हम्म, कि जैसे अगर मैं सिग्नल में खड़ा हूँ एंड वहाँ पे सामने कोई नहीं है, मुझे पता है कि आजू बाजू में सेफ है। सेफ है, कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है, हम्म, आई नो फॉर अ फैक्ट कि नहीं है कोई। हम्म, बट एज अ ट्रैफिक लॉ आई हैव टू फॉलो द ट्रैफिक लॉ। करेक्ट। नाउ if we say following traffic law is not हम्म, efficient, it does not make sense ना, we have to follow the एग्जैक्टली, traffic यस। laws. सो हम्म, उसका क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मतलब अगर लाइक यू सेड कि हम्म, पर्सनालिटी हो सकता है क्या हम्म, एआई का, डेफिनेटली। हम्म, बट कार मैन्युफैक्चरर्स आल्सो उनको क्या बोलते हैं, दे हैव टू फॉलो द नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड नेसेसरी थिंग्स। हम्म, नहीं तो गवर्नमेंट उनको परमिशन नहीं देंगी नहीं कि आप देगी। ये सिस्टम डालो करके। हम्म, जैसे
many of the RTOs, let's say, they will get lot of power on this in the coming Yes. future, in my opinion, where where the RTO officers themselves will, as a commission, they will have the power to issue permits for some particular cars to Hmm. be able to drive with human supervision. Hmm. मतलब जैसे अभी एडास टेक्नोलॉजी के ऊपर मेरे हिसाब से इंडिया में ऐसे तो कोई लॉ या बिल तो है नहीं, Hmm. मतलब प्रपोजल में भी नहीं है, हाँ. इम्प्लीमेंटेड भी नहीं है, Hmm. एंड इट इज अज्यूम कि ह्यूमन इज द ओनली वन हु इज लायबल, Level. कि मतलब पार्थ ने अगर Hmm. गाड़ी ठोक दी कल तो ओनली पार्थ इज Hmm. रिस्पॉन्सिबल, और मतलब एग्रीमेंट में भी होगा कि मैन्युफैक्चरर इज एट नो लायबिलिटी. एग्जैक्टली या. एग्जैक्टली। तो Hmm. होपफुली नेवर हैपेंस, बट द So this पॉइंट is the condition right now. condition is Yeah. right now that way. That is what I know, and I think that seems to be what we have in India. So Hmm. we need two things, I think, from government also. Hmm. We need some kind of a regulation, permissive regulation, Hmm. so that we can have these technologies implemented in India, so as to make people's life Hmm. easier. मतलब ऐसा बहुत प्रॉब्लम है कि एल्डरली लोग हैं जिनको ट्रांसपोर्टेशन का बहुत इश्यू है, Hmm. वो गाड़ी नहीं चला पाते, बट दे कैन वॉक एंड दे कैन सिट इन द कार, बट Hmm. उनको विजन बराबर नहीं है, Hmm. बट दे हैव सफिशिएंट विजन कि दे कैन क्वालिफाई फॉर ड्राइवर्स लाइसेंस। Yes. ओके, अगर वो पॉसिबिलिटी है तो इज इट नॉट अ गुड थिंग कि जो पर्सन एल्डरली है उसको गाड़ी चलाने में हेल्प करके दे रहा है, गाड़ी Assisted है वो. असिस्टेंट असिस्टेंट करके दे रहा है, ऐसे नहीं कि वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, Hmm. बट इफ आई एम ड्राइविंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, कभी एक दिन जाएंगे बड़ा एक्सप्रेस वे, मतलब खुलने पूरा के कब बाद. कब खुलने के बाद, बट जब होगा तो एंटायर टाइम इतना देर, इवन young person like me will not be able to focus करेक्ट. for 10 hours 12 hours on the road, कि वो बहुत ज़्यादा exhausting हो जाएगा, यस. कि तो AI फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इन अ वे जो कार्स का भी पार्ट है, इनफैक्ट बसेस को भी AI का बहुत यूज हो सकता है, कि जैसे अभी क्या होता है कि बस ड्राइवर्स भी जब बस चलाते हैं तो उनको बहुत इशू होता है, कि लॉन्ग आवर्स देता है उनको, हर जगह का ध्यान रखना पड़ता है, और अगर वो किसी एक्सीडेंट में चले जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट बड़ा व्हीकल करके उनको ब्लेम कर देते हैं देन कि इट्स मोर डिफिकल्ट इन इंडिया बड़ा गाड़ी हाँ चलाना. हाँ यस. हाँ, मतलब इट इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो अगर आप ऐसे जो लॉन्ग आवर्स है, जो इंटेंसिव आवर्स है, उनको आप हेल्प कर सकते हो कि उनका काम ज़्यादा एफिशिएंट करने के लिए, ऐसा नहीं कि लोगों का जॉब जाएगा। अब देयर इज अ लॉट ऑफ फियर इन द मार्केट कि शायद एआई की वजह से लोगों का जॉब जा सकता है, कि वी विल नॉट हैव जॉब्स इन इंडिया, या फिर AI takes हाँ, over most मतलब things. हाँ. रिस्पेक्टेड मिनिस्टर हैड गिवन स्टेटमेंट Statement. दैट वी विल नॉट अलाउ सेल्फ ड्राइविंग इन इंडिया, बट Hmm. शायद इसमें इसको कॉन्टेक्स्ट के साथ देखने की जरूरत है, कि एआई टेक्नोलॉजी जो सेल्फ ड्राइविंग कोट एंड Hmm. कोट what we are talking about is already existing in India in ADAS technology, बहुत cars offer करते हैं, they are not saying कि वो self driving है, Hmm. but वो large extent वो technology exist करता है, करता so है. it would be wrong to say कि वो allowed, है ही नहीं है. मतलब है ही नहीं, ऐसा नहीं है, it is allowed in India, but Hmm. it is not marketed in the way कि Hmm. सिर्फ गाड़ी अपने आप से चलाएगा, you Yes. don't have to do anything, कि and then important part जैसे हमने डिस्कस किया कि liability किसका है, so that Hmm. is the main thing, Hmm. so yeah. एक ना, आई हैव अ कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू ऑन दिस. Hmm. लेट्स हैव अ लिटिल बिट स्मॉल डिबेट ऑन दिस. Hmm. इट इज सेड कि आईटी बूम्ड इन इंडिया बिकॉज द बाबूस वर स्लीपिंग. Hmm. इट इज सेड कि ब्यूरोक्रेसी को समझ में ही नहीं आता था आईटी क्या है. Hmm. उसके वजह से उन्होंने इंटरफियर नहीं किया. एंड द पॉइंट व्हेन दे अंडरस्टूड व्हाट द आईटी इंडस्ट्री इज, तब तक वो बहुत ग्रो चुकी थी. Hmm. सो देयर वाज नो पॉइंट, एंड बेसिकली इट वाज अ रीजन व्हाई इट ब्लूम्ड. Hmm. मेरे को ऐसा लगता है कि बिफोर एनी रेगुलेशंस कमिंग, इट्स बेटर कि हमारे यहाँ पे कंपनीज है, चाहे इंडियन हो या कोई बाहर से हो, मॉडल्स वगैरह है, इट शुड बी डेवलप्ड एट सच एन एडवांस स्टेज कि उसको बैक ट्रैक करना पॉसिबल नहीं होगा, Hmm. बिकॉज इट विल ऑलरेडी बी सर्विंग एट अ Hmm. वेरी लार्ज Hmm. एक्सटेंट. बिकॉज माई फियर इज, बिकॉज आई हैव सीन हाउ द ब्यूरोक्रेसी फंक्शंस. जब भी कोई भी चीज के अंदर 1% भी चांस है ऑफ इट गोइंग रॉन्ग, द ब्यूरोक्रेसी इज बेस्ट ऑप्शन ओवर देयर इज टू जस्ट शट इट डाउन, और मेक रेगुलेशंस दैट विल स्केल इट बैक टू सच एन एक्सटेंट कि फिर वो ग्रो नहीं कर पाएगा. Hmm. बिकॉज हमारे यहाँ पे फ्रीडम देने की वजह से अगर कुछ गलती हो जाती है तो लायबिलिटी अगेन वो ऑफिसर पे आती है, Hmm. सिस्टम पे आती है, उसके बाद में पॉलिटिकल लॉस Hmm. भी हो सकता है अगर कोई बड़ी चीज होती है तो, वगैरह वगैरह. हाँ. एंड इन दैट केस, इफ अ रेगुलेशन कम्स मच बिफोर दैट इट इज नीडेड, तो फिर जो है मेरे को लगता है इंडस्ट्री कहीं ना कहीं पे हैंडीकैप हो जाएगी. Hmm.
if you see the Uber example, हुँ, वो लोग इलीगल ही कर रहे थे, विदाउट मेडिलियंस टैक्सीज चला रहे थे वगैरह वगैरह, बट दे स्केल्ड इट एट सच एन एक्सटेंट कि बाद में फिर गवर्नमेंट जब तक रेगुलेशन लाती, दे हैड टू कंसिडर कीपिंग उबर एंड द ड्राइवर्स हुँ, इन माइंड. हुँ। सो डू यू अग्री ऑन दिस और यू डिसएग्री ऑन दिस कि रेगुलेशन आराम से आना चाहिए? आई वुड से कि रेगुलेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हम क्या कर सकते हैं। हम्म. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप बताओ कि हाँ, हाँ. टोटली हमका हमारा लिमिट्स क्या है। हम्म. यू से कि व्हाट वी नीड इन द मार्केट इज वी नीड टू मेक पीपल्स लाइफ इजियर व्हाइल ड्राइविंग कार्स, दैट इज हम्म. द ऑब्जेक्टिव। हम्म. ओके, बट ऐसा नहीं कि आप टोटली कर दो कि इट्स अ प्रॉब्लम कि नहीं आप नहीं बना सकते कि हम्म. मतलब टू थिंक कि somebody कैन कंट्रोल द इंटरनेट एंड यू यस. नो से दैट कि इसमें कभी प्रोग्रेस नहीं होगा वुड बी लाइक लिटिल बिट फुलिश आई वुड से। And that's my issue कि ये हो सकता है with the current bureaucracy. If हाँ, they don't understand certain things, they नहीं will put मतलब a comma on it. माय हाँ, हाँ, माय पर्टिकुलर ओपिनियन, हाँ, पर्सनल हाँ, ओपिनियन इज हाँ, कि जैसे आपने बोला कि अंडरस्टैंडिंग आने तक हम्म. बहुत देर हो जाएगी। Yes. तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो कभी ना लाए या फिर लाइक दे शुड प्रोबेबली ट्राई टू हम्म. ब्रिंग थिंग्स व्हिच आर ऑलरेडी नोटिफाइड। जैसे मैंने डेटा प्रोटेक्शन बिल Yes. के बारे में बोला, हम्म. एआई के बारे में वो कंसर्न है। तो ऑलरेडी रेगुलेशंस मतलब लॉ एग्जिस्ट करता है टू प्रोटेक्ट पीपल, हम्म. टू इंश्योर कि उनका जो राइट्स है उनको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए एज इंडिविजुअल, या फिर जो नेसेसरी हम्म. रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो एक्चुअली सेटिस्फाइड है। बट अगर नहीं होता है हम्म. जो एग्जिस्टिंग मतलब जो है लॉज वो भी इम्प्लीमेंटेड नहीं है। हम्म. दिस इज वन एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू पोक बट हम्म. आई पॉइंट आउट, बट द थिंग आई एम सेइंग इज कि रेगुलेशन तो लाना चाहिए ताकि एटलीस्ट अगर कोई डिस्प्यूट होता है देयर इज सम फ्रेमवर्क। मैं ये भी नहीं बोलता हूँ रेगुलेशन मीन्स कि आप रूल ही बना दो कि इसको फॉलो करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगा। हम्म. मैं बोल रहा हूँ कि जैसे नीति आयोग अभी इज अ बिग वेरी बिग थिंक टैंक, हम्म. गवर्नमेंट का थिंक टैंक है वो। हम्म. पॉलिसी बनाता है या फिर पॉलिसी सजेस्ट करता है। इट हम्म. वुड बी लिटिल बिट रॉन्ग टू से कि पॉलिसी बनाता है बनाता बट है, तो फ्रेमवर्क बना के फ्रेमवर्क देता बनाता है, है। फिर बाद में हाँ, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा. हाँ, तो अगर आप ऐसा कुछ करोगे जिससे थोड़ा आइडिया आएगा लोगों को हम्म. कि दिस इज एक्स वाई जेड, दिस इज हाउ थिंग्स आर इन द वर्ल्ड, हम्म. स्टेट ऑफ द आर्ट ऐसे है। हम्म. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने में भी बहुत हेल्प होगा इसमें, हम्म. बिकॉज वेस्ट में या फिर जो कंट्रीज में सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी है, अपना सबसे क्लोजेस्ट नेबर चाइना ने भी इसको एक्सेप्ट कर दिया है। यस. बहुत पॉपुलर पॉपुलस कंट्री है हम्म. एंड वो मतलब आई डोंट नीड टू से सेपरेटली कि उनके यहाँ पे बहुत अलग ही कंसर्न्स है हम्म. इन टर्म्स ऑफ डेटा मतलब प्राइवेसी नहीं एग्जिस्ट करता है वहाँ पे। हम्म. तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे, इट इज़ नॉट अ थिंग। उनका नेशनल सिक्योरिटी का वैसे लॉज है। तो इन द सेम वे हम्म. अगर अपना नेबर्स भी जो इतना ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट लोग हैं वो लोग, तो उनके हिसाब से अगर वो कर सकते हैं तो इंडिया एज अ कंट्री कैन वी नॉट कम्पीट इन द मार्केट बाय सेइंग कि हम भी लाइसेंस देंगे आपको। हम्म. बट लाइसेंस देंगे मतलब क्या करने को देंगे? हम्म. ओके, तो आई एम नॉट सजेस्टिंग कि वी विल Basically, हैव। it shouldn't be very restrictive. हाँ, तो ऐसा ही एग्जैक्टली होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना नहीं होना चाहिए। चाहिए. रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए, हाँ. बट ऐसा कोई फ्रेमवर्क तो होना चाहिए जिससे राइट. इसको लेजिटिमेसी मिलता है। राइट. मतलब इफ यू सी इंडिया में सोसाइटी इज वेरी मच गाइडेंस लुकिंग। करेक्ट. मतलब इसका कोई रूल्स है क्या? नहीं है, बंद कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ. Like लाइक यू आर there are सेइंग। many such gray areas. जैसे हाँ, आपने ये कहा, ये तो है. Example, drone flying is one of those things. एग्जैक्टली। नीचे पुलिस भी बोलेगी हमसे परमिशन लो. However, when you're in air, it's DGC's concern. और हाँ, फिर हम रजिस्ट्रेशन डीजीसीए के साथ में करेंगे, हाँ, बट दो लेकिन हाँ, परमिशन हम बट पुलिस से बट उनका लेंगे. उनका रूल्स भी ऐसा है ना कि रूल्स हैव बीन मेड सच दैट कि इफ एनी लीगल अथॉरिटी ऑब्जेक्ट्स यू हैव टू ओबे, उनका वैसा है। Yes, तो everybody's NOC have to take. हाँ, तो बेटर है कि फर्स्ट तो आप उनकी नोटिस में मत At आओ। least there are some rules that have been now framed. कुछ नहीं तो तो है। कुछ तो पहले तो कुछ भी था. हाँ, हाँ, हाँ। ना था ही नहीं रूल्स. हाँ, अरे जैसे मेरे पास भी ड्रोन है जिससे मैं फ्लाई करता हूँ यस. रिक्रिएशनली। तो जब मैं फ्लाई करता हूँ तो मेरे पास ना जो ऑटो सर्टिफिकेट आता है, अब अगर डिजिटल हाँ. स्काई पोर्टल में यस, डालोगे, ग्रीन करेक्ट. जोन में फ्लाई करोगे, तो आपको तो अप्लाई करना पड़ता है, वो मतलब नोटिफिकेशन आता है. ऑटोमेटिक हाँ. आता है प्रिंट आउट, परमिशन जनरेट करके आता है। यस. तो अगर आप वहाँ फ्लाई कर रहे हो तो आपको लायबिलिटी कोई एक्सेप्ट करना पड़ता है पहले. मतलब नहीं, हाँ, वो हाँ. भी नहीं बोल रहा मैं तो बोल रहा हूँ कि कोई अगर आपको अफसर साहब आके
पॉइंट करते हैं कि आप करेक्ट। देखो ये अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुँ, हो कि सर आपसे रिक्वेस्ट करो, देखो एक बार परमिशन है मेरे पास, हुँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन है डायरेक्टली मेरे को, हाँ, तो आपको शायद ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा करेक्ट। कि वो मोर लाइकली देन नॉट मान जाएंगे कि हुँ, आप जो कर रहे हैं सही है। हुँ, एज ए सोसाइटी वी आर accustomed टू लिसनिंग टू आवर एल्डर्स, वी आर हुँ, accustomed टू सेइंग कि नहीं वो बड़े बोल रहे हैं तो सही है। सही होगा। हुँ, तो अगर वी आर थिंकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, यू नो इंडिया में भारत सरकार से बड़ा पेरेंट कोई है नहीं। करेक्ट। मतलब वो तो हम सब के पालक है, बिग डैडी है। तो तो मानना तो पड़ेगा। मानना पड़ेगा। यस, मतलब मोर ऑफन देन नॉट पीपल विल नॉट से एनीथिंग इफ यू हैव गॉट सम सॉर्ट ऑफ सैंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। करेक्ट। बट वी आर नॉट सेइंग कि आप सब अलाउ कर दो या फिर पूरा उसको कोई रिस्पॉन्सिबल फ्री कर दो। होल्ड दे दो, ऐसे नहीं वो कर हाँ, सकते। मतलब कुछ देयर शुड फ्रेमवर्क बी बना, बॉर्डर्स बट वेरी लॉजिकल बॉर्डर्स। वेरी लॉजिकल हाँ, बॉर्डर्स, जैसे थिंक टैंक से आप पॉलिसी डेवलप करवाओ, हुँ, नीति आयोग से विद एक्सपर्ट्स, पॉलिसी, विद इंडस्ट्री। एग्जैक्टली हाँ, आप पॉलिसी डेवलप कराओ। पॉलिसी एक बार डेवलप हो गया तो उसके हिसाब से अगर आप छोटा मोटा बिल पास कर सकते हो इन एडिशन टू सम अदर कोई बड़ा इनिशिएटिव, हुँ, रोड सेफ्टी इनिशिएटिव। रोड सेफ्टी के इनिशिएटिव के लिए भी बहुत चीज़ें ज़रूर है इंडिया में। हुँ, तो अगेन हम इस टेंजेंट में चले गए, बट द पॉइंट ऑफ इंफ्रा फॉर एआई इज कि क्या हम लोग ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, हुँ, हुँ, क्या हम लोग ये चीज़ें अलाउ कर सकते हैं जिससे लोगों का लाइफ ईज़ी होगा। तो हुँ, अगर अगर मैं सीलिंग क्रॉस कर रहा हूँ या फिर इफ आई एम गोइंग थ्रू अटल सेतु, तो इट इज़ स्ट्रेट रोड, इट इज़ नॉट करेक्ट। गोइंग एनीवेयर, उसको कोई लेफ्ट टर्न, राइट टर्न है नहीं। हाँ, तो ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल में आप देखोगे तो फॉर श्योर रोड पॉइंट ए टू पॉइंट बी ही जाने वाला है। हुँ, इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड अप इन नॉर्थ ईस्ट इफ आई स्टार्ट करेक्ट। फ्रॉम नवी मुंबई, हाँ, इफ आई गो उसका अटल मतलब सेतु। वो डिफाइंड पाथ पता है अपने को पहले हाँ, ही। तो हाँ, जो पहले स्टार्ट कैसे होगा, मतलब दिस इज माय विजन कि हुँ, शायद ऐसा हो सकता है कि फ्रॉम व्हेन यू स्टार्ट वन एरिया, लेट्स से कि जो थोड़ा लेस पॉपुलेटेड एरिया है, मैं तो बोलता हूँ कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में एआई फर्स्ट आ सकता है। हाँ, बिकॉज वहाँ पे पॉपुलेशन कम है एंड लोगों को रूल्स फॉलो करने का इंसेंटिव भी है थोड़ा बहुत। बिकॉज समझ लो कि अगर आप कोई रूल तोड़ोगे तो शायद कोई आपका वो रिलेशन में नहीं निकल सकता है जो विक्टिम हाँ, है, बिकॉज करेक्ट। इतने कम अमाउंट ऑफ लोग हैं, कम्युनिटी बहुत वो छोटी स्ट्रांग होती है, है। दे आर हाँ, स्ट्रांग कम्युनिटी। तो हुँ, थोड़ा सिविक सेंस भी ज़्यादा होता है, जैसे जो नॉर्थ में वी हैव सीन सम सिटीज गेट बेस्ट रन अवार्ड, क्लीन अवार्ड, हुँ, हुँ, कोई सिटीज के लिए। आई थिंक कोई था ना एक सिटी बीच में जिसको, इंदौर। हाँ इंदौर, इट गॉट बेस्ट रन सिटी, सिविक सेंस कितना ज़्यादा है वहाँ हुँ, पे कंपेयर टू अदर प्लेसेस, या वेल मेंटेन्ड है। तो जो मॉडल सिटीज है, तो वहाँ पे अगर आप स्टार्ट करोगे तो देन यू कैन सी कि ओके नॉर्मली इन द बेस्ट केस सिनेरियो इंडिया में एआई फॉर इंडिया कैसे बन सकता है फॉर रोड हुँ, स्पेसिफिकली। एंड देन कैन वी प्रोसीड फ्रॉम दैट टू से ओके इसके आगे व्हाट इज द नेक्स्ट वर्स्ट थिंग, हुँ, या उसके आगे क्या होगा। हुँ, मतलब अगर मुंबई में आप गाड़ी चलाओगे वर्सेस आप लेट्स से कोई पहाड़ी एरिया में जहाँ पे रिमोट एरिया चलाओगे, तो हुँ, एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। मतलब ह्यूमन के लिए भी अलग होता है, इट विल बी डिफरेंट फॉर द एआई एज वेल। तो ये वेरिंग रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस हुँ, है। जैसे कोई कोई जो ट्रांसपोर्ट में कमर्शियल रहते हो तो उनको हिल एंडोर्समेंट होता है गाड़ी पे, हाँ, लाइसेंस पे, यू नो। तो इवन ह्यूमन आल्सो नीड्स टू गेट हिल एंडोर्समेंट। हुँ, तो एआई को तो डेफिनेटली इट शुड नीड, हुँ, इफ एआई कैन मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ एटलीस्ट ह्यूमन ड्राइविंग हुँ, विद ह्यूमन सुपरविजन, यस, तो वो तो डेफिनेटली होना चाहिए, करेक्ट। जिससे लोगों का लाइफ इजी होगा। आपने ना लास्ट लास्ट में कमर्शियल की बात की। व्हेनेवर व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट एआई और सेल्फ ड्राइविंग कार्स, लोग है ना पैसेंजर व्हीकल्स पहले माइंड में आता है, राइट? बट इफ यू सी कमर्शियल ड्राइवर्स जो ट्रक्स चला रहे हैं, बसेस को फिर भी मैं पैसेंजर में काउंट कर लूंगा बिकॉज देयर इज वेरी लेस क्या कहते हैं उसको, डिविएशन ऑन व्हाट दे डू ऑन अ हम्म। डेली बेसिस। हम्म। लेकिन एक ट्रक ड्राइवर है, उसका लोड चेंज होता है, उसके हिसाब से उसकी गाड़ी की हैंडलिंग चेंज होती है, रूट्स आर डिफरेंट। इवन आई एम थिंकिंग, मतलब आई बिलीव देयर आर फ्यू रूल्स कमिंग जहाँ पे उनके वर्क आवर्स पे भी अब प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशंस होने वाले हैं फॉर हाउ दे आर इन यूएस एंड ऑल। यस, यस। तो वहाँ पे एआई ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट मेक्स देयर लाइफ मच इजियर, हम्म। और इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द स्मॉलर कार्स इन सिटीज। आई वुड से कि सबसे इजी टू इम्प्लीमेंट द फर्स्ट प्लेस वुड बी न्यू जनरेशन ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, बिकॉज उससे ऑपोजिशन कम आएगा।
कैन यू लाइक एक्सप्लेन इन डिटेल ये वाला पार्ट? मतलब जैसे आप देखोगे तो जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, हुँ, हुँ, वो संख्या में बहुत ज़्यादा है। हुँ, एंड जो amount of vehicles that manufacturer has to sell हुँ, in order for that प्रोडक्ट टू बिकम प्रॉफिटेबल, कि ऐसा ना हो जाए कि मैंने गाड़ी बना दिया और पूरा नुकसान हो गया, कि हुँ, किसी ने खरीदा नहीं है, फिर आई एम नॉट एबल टू मेक इनफ, कि मैंने प्लान डाला तो प्लान का जितना इन्वेस्टमेंट आरओआई नहीं हुआ हो पाया। आरओआई नहीं हो पाया। हुँ, दैट दैट इज नॉट हैपनिंग। हुँ, बट अगर आप ट्रक्स देखोगे या फिर कोई कमर्शियल व्हीकल देखोगे तो उनका वॉल्यूम कम होता है कंपेयर टू, आई वुड से, पैसेंजर कार्स। मतलब आई वुड से एनेक्डोटली भी अपने हिसाब से डे टू लाइफ में वी आर सीइंग कि रास्ते पे ट्रक्स और ये सब कम रहते हैं कंपेयर टू स्मॉलर लाइक पैसेंजर स्मॉलर व्हीकल्स, पैसेंजर। हाँ। अगर आप कमर्शियल एरिया में जाते हो तो मे बी इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट हुँ, मोस्ट रोड्स पे यू विल सी कि वो कम हुँ, है। मतलब जो कमर्शियल व्हीकल्स दे आर हुँ, लेस देन दी प्राइवेट व्हीकल्स। हुँ, तो कमर्शियल व्हीकल्स में कैसा है कि जैसे नए रूल्स आ रहे हैं, तो हुँ, गवर्नमेंट इज वेरी ओपन माइंडेड इन सेइंग हुँ, कि वी हैव मेड इट मैंडेटरी टू हैव एसी इन द कैब फॉर बस ड्राइवर्स नए वाले। हुँ, तो क्या उनका लाइफ और थोड़ा ईज़ी हो सकता है कि हुँ, एक्सीडेंट कम हो सकता है? एआई, क्योंकि एआई ऐसा चीज़ है ना, वो थकता नहीं है। करेक्ट। वो कंप्यूटर है, वो थकता हुँ, नहीं है। उससे 2 चीज़ है, ओके, एक इसकी उनका लाइफ ज़्यादा ईज़ी होगा, थकता नहीं है वो। एंड द सेकंड पार्ट इज़ आई वुड से कि अकाउंटेबिलिटी भी आएगा उसमें, हुँ, कि एआई है तो कैमरा है उसमें, हुँ, कोई सो रहा है सो रहा कुछ है, तो कुछ हो कुछ रहा कर है। रहा है। तो अल्टीमेटली द पॉइंट इज़ कि हू इज़ टू बी हेल्ड रिस्पांसिबल? हुँ, ट्रांसपेरेंसी भी आता है पूरा प्रोसेस में। हुँ, ऐसे हमने बहुत पुरानी मूवीज़ में देखा है कि एक बड़ा ट्रक जा रहा है, उसने एक्सीडेंट कर दिया ऑन पर्पस, विलन ने हुँ, उसको मार गिरा दिया, ऐसा कुछ हो गया। मतलब वी हैव दिस स्टीरियोटाइप अबाउट ट्रक्स बीइंग वेरी अनसेफ व्हीकल्स एंड दे बीइंग यूज्ड टू डू नेफेरियस थिंग्स हुँ, फॉर नेफेरियस पीपल। हुँ, तो जब ऐसा सब पूरा सिचुएशन होता है, तो कैन वी कंसिडर कि ये एआई की वजह से ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज हो सकता है? यस। आई थिंक जो बड़े व्हीकल्स हैं ना, दे विल बी बेटर डेटा कलेक्टर्स बिकॉज़ जनरली पैसेंजर व्हीकल्स जो होते हैं, 80 टू 90% ऑफ टाइम दे फॉलो द सेम रूट, सेम रोड, प्लस वो राइट? सेम मोस्ट ऑफ द टाइम टाइमिंग। खड़े भी होते हैं। हाँ, और वही मतलब बैठे होते हाँ, हैं। बट व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल व्हीकल्स, वो दिन भर अलग-अलग रूट पे चल रहा है, अलग-अलग सिचुएशंस में यस। चल रहा है। दिन में, रात में, खराब रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे। सो वेरिड डेटा उससे मेरे सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल डेटा ज़्यादा वहाँ से आने की More amount प्रोबेबिलिटी of है। data collection will be easier in that route, यस। मतलब for the commercial vehicles. And कैसा है कि वो शायद कम cost sensitive है compared to somebody who is हुँ, personal buy। मतलब अगर मैं अपनी जेब से पैसा डाल रहा हूँ जिससे मुझे कुछ पैसा नहीं आने वाला है, हुँ, हुँ, you know, I'm looking for transportation, इसीलिए I'm buying, हुँ, हुँ, so then that option will be very different versus somebody who is हुँ, commercial vehicle। अगर एक आध 10 लाख का 5 लाख का डिफरेंस हो जाता है, जिससे बहुत सारे कनेक्टेड फीचर्स आ जाते हैं हुँ, गाड़ी में, जिससे एआई का भी उसको बेनिफिट मिलता है थोड़ा, हुँ, इन कैबिन मॉनिटरिंग मिलता है, ऐसा सब मॉनिटरिंग ओनर्स के लिए यस। भी, हाँ, जो मोस्टली बॉट बाय कंपनीज़। कंपनीज राइट। होते हैं, या फिर इवन देर आर मेनी मेनी स्मॉल प्रोप्राइटर्स इन इंडिया हुँ, हु आर ओनिंग 5-10 ट्रक्स, हाँ, जो अपना बिजनेस चलाते हैं बाय ट्रकिंग का फ्लीट बिजनेस, मैनेजमेंट करते फ्लीट हैं। मैनेजमेंट करते हैं वो हुँ, लोग। दे हायर द ड्राइवर्स, यस। दे हैव सो मेनी अदर थिंग्स, एंड उससे वो करते हैं। तो ऑफ कोर्स दे विल नॉट माइंड लिटिल बिट पेइंग मोर व्हेन उनको हुँ, उनको कुछ शायद सेफ्टी सिक्योरिटी मिलता हाँ, है, उनको अकाउंटेबिलिटी मिलता है एंड क्या। ऑफ द डे उनके हाँ, बिज़नेस के लिए अच्छा है। एग्जैक्टली, हुँ, दे आर गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम इट। यस। तो उनको उतना कॉस्ट सेंसिटिव नहीं हुँ, होगा। तो नाउ वन ऑफ द मोर बिगर एग्जांपल्स ऑफ कि हाउ इट कैन बी रियली गुड फॉर इंडिया इज कि वेस्ट वेस्ट में से, नाउ अगेन आई एम गोइंग टू कोट टेस्ला क्वाइट अ लॉट बिकॉज़ दे आर द लीडर इन दिस हुँ, एआई स्पेस। तो टेस्ला के पास टेस्ला सेमाई है। हुँ, सेमाई मतलब सेमाई ट्रक, यस। जो बहुत लंबा लंबा ट्रक होता है। हुँ, हुँ, एंड आई वुड से कि इंडिया में भी फ्यूचर में देयर विल कम अ टाइम वेयर container trucks will be like प्राइमरीली यूज्ड। primarily used and they will look like that, हुँ, but maybe वो तब होगा। इनफैक्ट डिलीवरी हैज़ स्टार्टेड मल्टी कंटेनर ट्रेलर्स ऑन समृद्धि रोड। यस, यस, यस। यस, तो वो टाइम आएगा कि हुँ, व्हेन वी विल हैव दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, हुँ, स्पेशली जब अपना इंडस्ट्री एक्सपैंड होगा, हुँ, बिकॉज टू थिंग्स, हुँ, हुँ, इकोनॉमी एक्सपैंड होगा, जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज होगा, तो यू विल हुँ, हैव अ सिचुएशन वेयर पीपल हैव मोर स्पेंडिंग पावर। हुँ, स्पेंडिंग पावर इंक्रीज होगा तो यू विल हैव सिचुएशन वेयर इंडस्ट्री भी बढ़ सकता है। हुँ, हुँ, इंडस्ट्री बढ़ेगा तो यू विल हैव मोर कमर्शियल बेटर कार्स,
एंड मेरे हिसाब से इंडिया का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। हुँ, तो अगर आप उस हिसाब से सोचोगे दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू मेक श्योर कि ये सारे फीचर्स जो है कमर्शियल व्हीकल्स में एंड हुँ, एवरीथिंग प्रेजेंट है, ताकि वी कैन एक्चुअली मेक द सो कॉल्ड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द रोड, हुँ, मतलब जो नेसेसरी है बनाने के लिए। हुँ, मतलब अभी कौन बना रहा है मुझे पता नहीं। पता नहीं। अगर कोई बना भी रहा है तो इट इज नॉट इज लाइक इज हुँ। पब्लिक। इन द ऑटो एक्सपो एंड ऑल बहुत शोकेस वगैरह तो होते हैं कॉन्सेप्ट ट्रक्स एंड कॉन्सेप्ट बसेस एडास वगैरह के साथ एंड सब टेक के साथ, बट आई डोंट थिंक मतलब कमर्शियली अवेलेबल कुछ है हाँ, तो ऑल्सो। हाँ हाँ। हाँ, दैट इज द थिंग व्हिच आई फील यस। कि स्केल पे लॉन्च होना लॉन्च चाहिए, होना कि चाहिए। सिर्फ कमर्शियली दिखा के मतलब नहीं है। वी एज इंडियंस आई वुड से वी वांट दीस थिंग्स, मतलब हम राइट। टेक्नोलॉजी। शोरूम में दिखना चाहिए वो। हाँ, शोरूम में दिखना चाहिए। हम्म। तो यस। लेट्स टेक अ 360 डिग्री फ्लिप फ्रॉम बिग व्हीकल्स। हाँ, हम बात करते जा रहे हैं कार्स, ट्रक्स, टेम्पोज, बसेस, ये वो, बट स्टिल मेजोरिटी आई वुड से 80 to 90% ऑफ इंडियंस डोंट ओन अ कार। मोस्ट ऑफ देम राइड ऑन अ टू व्हीलर। दो टू व्हीलर पे, बाइक पे सेल्फ ड्राइविंग इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है क्या? है हैज एनीवन ट्राइड? है देयर इज अ ओके। देयर इज अ देयर इज अ पर्टिकुलर मॉडल व्हिच आई हैव सीन ऑनलाइन। हाँ। उसका एग्जैक्ट मुझे रेफरेंस याद नहीं अभी, बट आई हैव सीन इट ऑनलाइन, हम्म। जहाँ पे द बाइक इज स्टैंडिंग बाय इटसेल्फ एंड इट इज ड्राइविंग। तो वो तो बैलेंसिंग हो गया ना उसमें, जो आई थिंक होंडा का कुछ तो एक कॉन्सेप्ट नहीं, भी नहीं, है आई वो। एम सेइंग कि वो बैलेंसिंग तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। हाँ, राइट, टू राइड अ बाइक यू हैव टू बैलेंस, राइट। दैट इज द हाँ। फर्स्ट स्टेप। मैं बोल रहा हूँ कि उस पे कैमरा लगाना कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, कि हम्म। अगर आप ऑटो मैन्युफैक्चरर हो तो डेफिनेटली यू आर क्वालिफाइड इनफ टू पुट मोर हार्डवेयर ऑन टॉप ऑफ इट। हम्म। तो उसमें इनफैक्ट आई वुड से उस पे ज़्यादा जगह है लगाने के लिए, मतलब हम्म। जो नैरो रहता है ना, बाइक ऐसा इज मच नैरो देन द कार। हम्म। तो इट्स पॉसिबल फॉर अस टू सी लेफ्ट है, राइट है, कहाँ पे है। तो अगर वो पर्टिकुलर हर फील्ड ऑफ व्यू बहुत अच्छा फील्ड है। ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत अच्छा है, हम्म। तो देन इट इज पॉसिबल। अगर ह्यूमन चला सकता है तो एआई डेफिनेटली चला सकता है। बट एक बाइक जो होती है ना, उसके चलाने के पैरामीटर्स अलग होते हैं, लाइक यू कैन लीन अ बाइक एंड इट विल स्टिल बी नहीं, ऑन होगा, द रोड ट्रैक। होगा, तो होगा। उसमें सेंसर्स वगैरह भी आई थिंक अलग लगेंगे, राइट? देयर वुड बी जायरोस्कोप्स दैट विल बी गिविंग डेटा, और देयर यस, विल बट बी। दे वुड बी हाँ ऑलरेडी प्रेजेंट, बिकॉज हाँ। अगर बाइक है तो इट शुड बी एबल टू बैलेंस इटसेल्फ। तो राइट। बैलेंसिंग से जायरो से ही फर्स्ट डिटेक्ट होगा ना। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, तो फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ बैलेंसिंग है क्या वो हाँ बाइक। अगर वो है तो हाँ। आगे सारा चीज हो सकता है। लेट्स गो इनटू एन इमेजिनेटिव टेंजेंट ओवर हियर। हम्म। जैसे कार होता है ना, जब उसमें एडास आ जाता है, ये इवन टेक वेरी बेसिक क्रूज कंट्रोल है, इट टेक्स यू अवे फ्रॉम सम टास्क दैट यू हैव टू परफॉर्म। थोड़ा आपको काम कम करना पड़ता है, बिकॉज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, इफ टू व्हीलर इज मच मोर नेचुरल टू ड्राइव कंपेयर टू फोर व्हीलर, स्पेशली इन ट्रैफिक, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टिव हो जाता है, स्पेशली इन बिग सिटीज। यू कीप ऑन लुकिंग एट द थ्री मिरर्स, खिड़कियों से बाहर देखो, यू हैव ब्लाइंड स्पॉट्स एंड ऑल दैट। टू व्हीलर में आप एक नेचुरल तरीके से चलाते हो, राइट? यू यू हैव योर वेट ऑन द हैंडल्स, आप लेफ्ट करते हो तो व्हीकल वैसे नेचुरली मूव करता है, एंड इट्स अ मोर एंगेजिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस। सो लोग बोलते हैं ना, टू व्हीलर्स मूव योर सोल एंड वॉट एवर दैट थिंग्स आर। तो ये यहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग जब बन जाती है, देन डज लाइक इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ राइडिंग अ बाइक और टू व्हीलर एग्जिस्ट ही नहीं करता। आई थिंक ऐसा नहीं होगा, हाँ हाँ। बिकॉज आप कुछ भी कर लो, बट लोग मजे के लिए गाड़ी हमेशा चलाएंगे। गाड़ी मैंने ऐसे गाड़ी इट विल मीन कि वीकेंड वाला काम जो है, एनी हाँ एनी हाँ। कार और एनी व्हीकल दे विल ड्राइव फॉर फन रिगार्डलेस। यस। मतलब इट इज अ एक्टिविटी, हाँ। it is an activity rather than something like my father would not be interested in driving something which totally would be driving by itself like हमेशा, हम्म। मतलब he probably enjoys driving the car। हम्म। उनको पसंद है। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हो गए जिनको रिक्रिएशनली ड्राइव करने को पसंद है, या फिर इवन मेरे जैसे यंगस्टर्स भी होंगे जो अपने हिमालयन रॉयल एनफील्ड लेके चला रहे हैं, दे हाँ। प्रेफर टू गो माउंटेन्स, कभी माउंटेन लाइफ हैशटैग करके वो लोग तो जाना है। हाँ, जाना है उनको, तो उनको पसंद है। हुँ, तो वो ह्यूमन रिक्रिएशन का पार्ट तो कभी नहीं हुँ, जाएगा। दैट इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। बट आप अगर आप समझ लो कि आपको सेफ्टी एनहांस करना है। हुँ। क्या क्या अगर क्या होता है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो और बाजू से एकदम से गाड़ी आ जाता है, आपको दिखता ही नहीं है। हाँ, व्हिच इज़ व्हाई मोस्ट एक्सीडेंट्स ऑन टू व्हीलर्स हैपन। यस, या मतलब यू गेट ब्लाइंड साइडेड, करेक्ट। दिखता ही नहीं है। हाँ। तो अगर आपको दिखता नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है देखने के लिए, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, क्या अगर वो बाइक पे कैमरा होगा, सेंसर्स हुँ, होगा,
जिससे बाइक आपके लिए खुद Hmm. ब्रेक करेगा, Yes. This इमरजेंसी exists ब्रेकिंग। today, right? In many cars, I was in a हाँ, recently और मैंने वो होते हुए देखा कि यस, on a green signal the guy accelerated और एक ऑटो वाला सिग्नल तोड़ के आया जो दिखा नहीं हमको, and the car literally panic braked so hard automatically, एक एग्जैक्टली। एक्सीडेंट होते होते मतलब ऑटोमेटिक बचा, इमरजेंसी ब्रेकिंग ए ब्रेकिंग बी हुआ। होता है, फीचर रहता है। आई थिंक ऑन बाइक्स इट इज मच मोर लाइफ सेविंग। यस, या तो अगर ये गाड़ी पे हो सकता है तो कैन वी नॉट मेक इट पॉसिबल टू फॉर टू व्हीलर्स। व्हीलर्स इन दिस वे, कि टू व्हीलर का फेटालिटी रेट इज मच हायर देन कार का फेटालिटी रेट। करेक्ट। ओके, तो अगर ये पॉसिबल होता है तो व्हाई नॉट, बट क्या है कि आर्ग्यूबली इंडिया में लोग टू व्हीलर इसलिए चलाते हैं बिकॉज दैट इज द चीपर ऑप्शन टू ड्राइव हाँ, व्हीकल। दैट्स द ट्रूथ। तो As soon as someone is like capable of getting a car, they'll दे get a विल बाय कार हाँ। ऑटोमेटिकली। सो मार्केट ही ऐसा है हम्म। कि जिसको ये चीज की जरूरत है सबसे ज्यादा। तो Is India having a bigger मतलब कार्स तो बना रहे हैं ना, हाँ, चाइना बना रहा है, हाँ, यूरोप बना रहा है, अमेरिका बना रहा है। इंडिया इज द बिगेस्ट टू व्हीलर मार्केट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स डू दे हैव दिस बिग एडवांटेज दैट दे शुड थिंक अबाउट? यस, बिकॉज उनको कैसा बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हम्म। ओके, लाइक आई वुड आर्ग्यू कि जो ऑटो इंडस्ट्री है इज सेट टू सच अ बिग बूम, और फ्यूचर में होगा एज पीपल विल बिकम मोर वेल्दी इन इंडिया। हम्म। ये अगर आप ट्रेंड्स देखोगे कार मार्केट के फ्रॉम अदर कंट्रीज, जहाँ पे लेट्स से इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा इज मे बी अराउंड $2,500 पर एनम हम्म। है रफली, हम्म। मे बी इट इज लिटिल बिट मोर देन दैट, बट अराउंड दैट मच। तो उसके आगे आप देखोगे जो कार मार्केट जिसने फॉलो किया था, बाकी चाइना का हो या बाकी कोई और मार्केट हो, तो व्हेन पीपल स्टार्ट हैविंग मनी दे स्टार्ट बाइंग लॉट ऑफ कार्स। हम्म। मतलब इन आवर हाउस होल्ड अलोन वी हैव 2 cars, हम्म। that is one my father owns and one I am driving. हम्म। Okay, so I am trying to say that अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है, ये बढ़ते ही जाएगा और बढ़ते ही जाएगा पूरा टोटल। इट्स ऑन द बिगिनिंग ऑफ दैट एक्सपोनेंशियल यस, कर्व। हाँ। मतलब अगर आपको याद होगा देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जहाँ पे किसी के पास मारुति 800 आया तो इट वाज अ ह्यूज डील। इवन आई एम फ्रॉम 90s, मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में किसी के पास बचपन में कार था ही नहीं किसी के घर पे। एग्जैक्टली, एंड बाय द टाइम वी वर इन योर 20s एवरीबडी हैड अ कार इन देयर हाउस। और ये पिछले 7 से 8 साल में हुआ है। एग्जैक्टली। Like I can't think of a friend right now from my school days who lives nearby who didn't have like who had a car from childhood but doesn't have a car right now, या फिर ऐसे अभी है, सबके पास है। यस, एंड वो बहुत एक्साइटिंग है एज Yes. अ मार्केट फॉर मी Hmm. बिकॉज जैसे ये जो इंफ्रा बना रहा है गवर्नमेंट, तो Hmm. किसके लिए बना रहा है? Correct. अगर कोई टोल भरने वाला नहीं होगा तो ये पैसा डूब जाएगा ना। Hmm. Hmm. जो गवर्नमेंट एक्सप्रेस वे बना रहा है, इतना ब्रिजेस बना रहे हैं, ब्रिजेस क्या बना कर रहा रहे हैं, है, हाँ। अगर उसको कोई यूज नहीं करने वाला है तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट फीजिबल नहीं होगा। फीजिबल। मतलब हाँ। इट्स अ डेट ट्रैप, वरना करेक्ट। डेट ट्रैप है, कोई यूज नहीं करेगा तो डेट ट्रैप है। बट बिकॉज ये मार्केट बहुत बूमिंग है एंड गवर्नमेंट नोज कि थिंग्स विल गो इन द पॉजिटिव वे, हम्म। मतलब दे नो, बट आई एम होपफुल दैट दे विल डू इट इवन बेटर, हम्म। और अच्छे से करेंगे वो लोग। तो मार्केट तो बहुत ज़्यादा है, बट अर्लियर लाइक आई वाज सेइंग कि जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट द बाइक्स, बाइक्स का प्रॉब्लम ये है कि अगर ये एडास टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी ब्रेकिंग वाला टेक्नोलॉजी है, जिसको चाहिए, मतलब द पर्सन हु इज प्रॉब्ली बाइंग 1 लाख का 1.5 लाख का बाइक, मोटरसाइकिल। हम्म। motorcycle, so maybe that person is the person who needs this technology the most, हम्म। because they are the mass market in India, करेक्ट। मतलब वही खरीदने वाले हैं। रॉयल एनफील्ड का बाइक आप अगर लोगे तो मे बी एंट्री लेवल 1.5 लाख तो चालू होता है, कितना एग्जैक्टली आई वन डोंट नो, 70 180 में वन वन एंट्री एटी होता है, हाँ। 180 में आता है आपको, विद ऑन रोड प्राइस उतना आता यस। होगा। ओके, तो मे बी यू कैन से कि रफली दैट इज द प्राइस दैट समबडी इज पेइंग फॉर गुड क्वालिटी मोटरसाइकिल। हम्म। तो क्या वी कैन ब्रिंग दैट ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी टू with this AI हम्म। features to something like a basic two-wheeler? Like, हम्म। is it possible? हम्म। बहुत चैलेंजिंग ये लगता है कंपनी मुझे। को सोचना चाहिए। लाइक आई एम थिंकिंग मतलब मेरे दिमाग में एक कम्युनिटी प्रॉब्लम कि इमरजेंसी ब्रेकिंग हुआ, हम्म, कार इज स्टेबल ऑन द ग्राउंड, लेकिन बाइक का रुकना इज बेसिकली आदमी मतलब गिरना शुरू हो जाएगा। बट देयर राइट, इज अ फिर डिफरेंस। अगेन फिर वो हाँ, बैलेंसिंग लाना पड़ेगा बट आपको। देयर इज अ डिफरेंस, वो बैलेंसिंग तो आप डाल सकते हो, हाँ। ऐसा नहीं है कि कभी हुआ नहीं है। यस। दिस इज बीन डन बिफोर। बीन डन। तो आई एम सजेस्टिंग टू यू कि अगर ए बी जो कार्स के साथ में अगर आप जा रहे हो तो उसमें आप छोटा सा सीट बेल्ट नहीं डाल सकते हो। करेक्ट।
Yeah, something can be done. समथिंग मतलब Solutions are that obviously everything. हाँ, हाँ. तो क्या है कि हमारे यहाँ पे लोग बोलने वाले बहुत लोग हैं कि अरे इसका क्या होगा फिर? मतलब व्हाटअबाउटिज़्म बहुत है कि व्हाट हाँ, अबाउट दैट? व्हाटअबाउटिज़्म तो व्हाट बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। है. मतलब आई एम पार्ट ऑफ अ ऑनलाइन कम्युनिटी ऑन एक्स जहाँ हुँ. पे वी इट्स लाइक अ बिल्ड इन पब्लिक। तो हुँ. वहाँ पे दे हैव अ सेइंग समटाइम्स यू कैन जस्ट बिल्ड थिंग्स। हुँ. मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है, Right. बना लो। Like Indian mind is very problem oriented rather than being solution सॉल्यूशन oriented. ओरिएंटेड हाँ। बट ठीक है, आई थिंक इट विल चेंज विद टाइम। सी मेरे को ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ इंडियंस नो हु आर आउटसाइड ऑफ टियर वन, दे हैव लाइक वॉच देयर चाइल्डहुड या उनके पेरेंट्स ने जो बचपन देखा है, इट वाज वेरी लाइक होपलेस। तो उनके अंदर थिंकिंग ही वैसा डेवलप हो गया है। बट हाँ। प्रॉब्लली द नेक्स्ट जनरेशन दैट इज कमिंग अप, दे विल बी मोर होपफुल rather than hopeless, and the mind will obviously become solution oriented Uh, as the country of course. progresses. Like सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम when I say problem I need to say is that कि सबसे ज़्यादा मुझे जो होप है लोगों के Mhm. लिए is that कि जो मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ जिससे we will be able to have AI for India Mhm. in India by Indians. Mhm. तो बिकॉज़ आप अगर पूरा वैल्यू चेन नहीं ओन करोगे Mhm. तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। लाइक Mhm. इन टर्म्स ऑफ नहीं तो आपको जैसे अभी रिसेंटली वी आर थिंकिंग अबाउट बाइंग जेट फाइटर जेट्स फ्रॉम अब्रॉड Yes. Mhm. एंड F-13s, हाँ एफ थर्टी फाइव F-35s, एफ yes. थर्टी फाइव हाँ. वी आर थिंकिंग अबाउट इट या फिर जो सू एयरक्राफ्ट अभी आया था ना बैंगलोर के एयर शो में सुखोई. तो सुखोई हाँ. एयरक्राफ्ट सू 50 ऐसा कुछ हुँ. एग्जैक्ट मुझे याद नहीं बट Yes. तो दैट वी आर ट्राइंग टू बाय तो हमारे पास है ऑलरेडी जो हम बना रहे हैं 30 साल से हम लोग फाइटर बना जेट ही बना रहे हैं. रहे हैं हैल बना रहा है हुँ. एयर चीफ का रिसेंटली इंसिडेंट आया था वीडियो उसमें आया था. वीडियो आया था उसमें बता रहे थे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है हैल को देना चाहिए जो भी है हुँ. बट फॉर वॉट एवर रीजन whoever is to blame it is not being done yet हुँ. तो अगर हमारे एलीट इंजीनियरिंग टैलेंट भी सो कॉल्ड अचीव नहीं कर पा रहे हैं एट वो तो अलग ही कॉम्प्लिकेशन हुँ. लेवल है बट आई एम टॉकिंग अबाउट मोर सिंपल थिंग्स हुँ. कि ये ऐसा चीज है कि कोई घर पे भी बना सकता है एज अ हुँ. डेमो कॉन्सेप्ट कि स्टार्टअप फाउंडर्स अगर आप कोई सुन रहे हो हुँ. तो मेन पॉइंट आपको यही सुननी चाहिए कि अगर आप डेमो बना सकते हो आप फंड रेज कर सकते हो तो आप उसका कुछ मोनेटाइजेशन कर सकते हो हुँ. जिससे आपको सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हुए हैं जो यूनिकॉर्न बन के हैव डिसअपियर्ड बिकॉज उनका बिजनेस प्लान सही नहीं था हुँ. कि एआई बना लिया बट उसको मोनेटाइज कैसे किया जाए राइट. इंडिया में बहुत बहुत मुश्किल लगता है मुझे आई थिंक ये मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड मोनेटाइजिंग एआई प्रोडक्ट हैज बिकम डिफिकल्ट। लाइक सब्सक्रिप्शन मॉडल्स इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, या फिर आप कंपनीज को बेच रहे हो अलग बात है, बट इट इज नॉट प्रॉफिटेबल येट। बट आई थिंक यस इट विल चेंज, एवरी इंडस्ट्री में हाँ ये होता हाँ है। ई कॉमर्स भी नहीं था पहले प्रॉफिटेबल, अभी तो कमा रहा है बहुत सारा। हाँ हाँ सो आई थिंक इवन दिस विल चेंज। बट आई थिंक इन इंडिया ना, क्योंकि अपने पास इतना बड़ा मतलब एक स्केल है, प्लस आई थिंक वी आर अ वेरी डिजिटल इकोनॉमी। मतलब कंपैरेटिवली ऐसा नहीं है कि बहुत लोग डिजिटली नॉलेजेबल है, हम्म बट एक्सेस है at least at basic facilities। हम्म तो उसकी वजह से anybody who is developing something, not just in infra AI ये पार्ट में, कोई और में भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ज़्यादा है। बट लेट्स सी हाउ दिस स्केल्स अप। लेट्स गो बैक टू द मेन टॉपिक दैट वी वर डिस्कसिंग हम्म ऑन। नेक्स्ट सवाल मेरे को ये पूछना है कि ये हो गया एक चलती गाड़ी की बात जो हमने की, ये सब उसके अंदर और उसके सर्वर्स के बीच की बातें चल रही है। अब हम सड़क पे आ जाते हैं, राइट? जैसे आपने कहा कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस से कैमरा का जो सिस्टम होगा फाइन्स देने के लिए, दैट वुड बी ऑटोमेटेड, राइट? वेयर एल्स कैन सच सिस्टम्स बी इम्प्लीमेंटेड, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ पेनल्टीज एंड ऑल दैट, बट अदर थिंग्स जहाँ पे एआई इम्प्लीमेंट हो सकता है, डू यू थिंक? जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंफ्रा है सबसे बड़ा एग्जांपल हाईवे है हम्म। ओके मतलब इट्स मोस्ट विजिबल एग्जांपल तो मैं हम्म। इसीलिए हाईवे का एग्जांपल दे रहा हूँ हम्म। कि रोड्स पे कंडीशन बहुत डायनामिक रहता है स्पेशली मानसून्स में या फिर हम्म। जब बहुत बरसात होती है या कोई जगह पे हम्म। जैसे कश्मीर या फिर एरियाज में बर्फ भी गिरती है बहुत हम्म। डेंजरस है तो क्या हम लोग वहाँ पे अलोंग दी हाईवे वहाँ पे ये ऐसे साइन बोर्ड लगा सकते हैं जिससे वो लाइव कंडीशंस दिखाएगा ट्रैफिक के हाँ। जिससे इट विल आल्सो से कि what kind of precautions that person should take based on हम्म। how things are looking. This is very हम्म। basic example of how we can हाँ। implement some sort of a disaster response system कि अगर होता है तो हमारा सड़क बंद नहीं होना चाहिए हुँ। सड़क बंद हो गया देश रुक जाता है हुँ। तो वो नहीं होना चाहिए हमारे राइट। कंट्री में
तो वो हम्म, हम लोग अगर ऐसा कर सकते हैं तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन डू। हम्म, एक और मुझे लगता है पर्सनली कि जो ट्रेन्स भी देखे, हम्म, ट्रेन्स आर वन ऑफ द एग्जांपल वेयर ऑलरेडी बहुत ऑटोमेशन आ चुका है। हाँ, इन द सेंस कि मतलब आप भी जानते हो कि जब ट्रेन जाता है तो नॉट नेसेसरी दैट द गाय हैज टू पंच इन कि कोई पर्टिकुलर स्टेशन में जाना है, क्या है उसका इन सेट पाथ होता है ना। in local trains literally now they have implemented systems जहाँ पे actually बाहर सिग्नल देखने की जरूरत नहीं है. This is live on tracks right now in हाँ Mumbai हाँ। जहाँ पे the entire signaling comes to their cabin and it is like announced हम्म कि next signal is this, next signal is that, हम्म and it takes a lot of headache away from the loco pilot. हम्म। तो बेसिक लेवल पे तो इम्प्लीमेंटेशन ट्रेन्स में अच्छे से होने लगा है. एग्जैक्टली एंड ये बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम रहता है हम्म, कि इट इज नॉट सो सिंपल टू इम्प्लीमेंट, बट हम हम्म, लोगों ने कर दिया है। हम्म, तो इंडियन गवर्नमेंट हैज डन इट विद अ व्यू ऑफ इम्प्रूविंग सेफ्टी। हम्म, क्योंकि अगर हम बोलेंगे नहीं हम वो जो ट्रेन के लोको पायलट है वो हम्म. जरूरत ही नहीं, तो फिर इट इज अ पॉलिटिकल इशू ऑल्सो कि वो बहुत यूनियंस एंड ऑल दैट बहुत बड़ा इशू है बहुत वो. हाँ. बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू एट दैट पॉइंट। सो वी आर नॉट, व्हेन वी ट्राई टू से कि वी आर ब्रिंगिंग एआई, इट इज फॉर पीपल्स बेटरमेंट लाइफ ऑफ टू लाइफ. बिकम हाँ. इजियर। कि ऐसा नहीं होगा कि उसका जॉब चले जाएगा। हम्म, नाउ आई एम सेइंग कि जो रिडंडेंट जॉब्स है वो शायद घटेंगे, मतलब हम्म, शायद नए ओपनिंग्स ना आए। हम्म, ऐसा हो सकता है एआई की हम्म. वजह से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि करेंट जो जॉब्स. करंट जॉब्स पूरे ही चले जाएंगे। मतलब आई एम श्योर कि देयर माइट बी सम जॉब लॉसेस, बट हम्म, इट विल नॉट बी इनफ टू से कि वी शुड नॉट इम्प्लीमेंट इट। हम्म. कि सेफ्टी कम करना एट द एक्सपेंस ऑफ सेइंग कि वी आर गोइंग टू स्टिल कीप पीपल एंड कीप पेइंग देम, एंड देन हम नया सिस्टम नहीं लेके आएंगे बिकॉज उससे जॉब लॉस हो जाएगा। तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल ना। नॉट एज लाइक एज गुड पब्लिक वी हैव टू लाइफ. डिमांड कि हमारी लोकल ट्रेन सेफ हो, हम्म, हमारे रोड सेफ हो, हम्म, हमारे फ्लाइट्स भी सेफ हो। इनफैक्ट फ्लाइट्स में भी एआई यूज होता है हम्म, एवरी डे ऑन डे टू डे बेसिस। जब हम लोग टेक ऑफ करते हैं देर इज एआई इम्प्लीमेंटेड इन दैट पर्टिकुलर बोइंग या फिर जो फिर बस. एयरबस का एयरक्राफ्ट रहता है, एम्ब्रायर का रहता है, छोटा रहता है, कि आप डालो अपना कोऑर्डिनेट्स इसमें, और टेक ऑफ होने के बाद में, लैंड होने के बाद में वो जो पायलट रहता है ही इज मॉनिटरिंग, नॉट मतलब एक्टिवली फ्लाइंग. नॉट हाँ. एक्टिवली फ्लाइंग। एंड मेनी टाइम्स दे आर स्लीपिंग ऑल्सो। हाँ. एक्टिव मतलब होता है हाँ. कि दे आर स्लीपिंग एंड दे विल टेक टर्न्स। राइट. दिस हाँ, इन लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स. लॉन्ग लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स में दे विल यस. टेक टर्न्स। एंड मतलब आई डोंट थिंक एवरेज इंडियन अंडरस्टैंड्स कि ऐसे होता है. ऐसे होता है कि मेरा पायलट सो रहा है और मैं भी सो रहा हूँ। आई रिसेंटली डिड अ वीडियो ऑन, मतलब मैंने उसके थोड़ा रिसर्च किया था कि इंडिया में बहुत मेट्रोज जो है ना, दोज आर केपेबल ऑफ ड्राइविंग विदाउट अ लोको पायलट. उसमें सब में सीबीटीज है. इनफैक्ट आई थिंक लास्ट 8-9 ईयर्स में जितना मेट्रोज देश में बना, almost everybody is like ready for driverless operations, but everywhere there is loco pilot except a few lanes. वो भी अभी वापस उसमें उन्होंने लोको पायलट इम्प्लीमेंट कर दिया है. सो इन माय रिसर्च आई फाउंड आउट trust is a major issue where people don't feel comfortable if they don't see a person, हाँ, which is not the concept. You go to Dubai, you go to any other it place, will change with it will time. change with time. It will change. That giving like trusting a machine Hmm. is very difficult for Indians at scale, and I can understand why also. क्योंकि हिस्ट्री जो रही है हमारे देश में इंसिडेंट्स हाँ, की या जो एक्सीडेंट्स की, दैट डजंट हेल्प इन that is there, and मीटिंग also ट्रस्ट. क्या है कि I feel bad of saying this, but like जो somebody to blame कि इसके वजह से हुआ, हाँ, वो नहीं मिलता है फिर. then you cannot claim कि राइट. ऐसा हो गया ना। then राइट. system failure हो गया तो there is nobody to blame per se, नोबडी टू ब्लेम. या फिर manufacturer is to blame, but it's very hard to go after a multinational corporation हम्म. and say कि you have to pay us crores of money because your system failed, Failed. versus pursuing one individual person and sending him to jail। इट्स एज गुड एज एक्ट ऑफ गॉड. हाँ, राइट. अगर इतने बड़े सिस्टम में कोई एक छोटा फेलियर आता है तो उसमें कंपनी की भी लीगली भी आई डोंट थिंक दे कैन बी जैसे टेकन वन फॉर. मोर कंसर्न, जैसे अभी नेटफ्लिक्स पे आई एम वाचिंग दिस सीरीज नाउ रिसेंटली, इट्स कॉल्ड जीरो डे, इट जस्ट केम आउट डे फर्स्ट आई थिंक सो। ओके, तो जीरो डे सिस्टम है, मतलब या फिर वो सीरीज है। तो द आइडिया ऑफ जीरो डे इज सच दैट, और जीरो डे मीन्स that there is some unknown exploit. When I say exploit, I mean to say some hack, जिससे you can gain access to a system and compromise it। ओके. तो ये अगर एआई एआई ड्रिवन सिस्टम या पूरे ऑटोमेटेड सिस्टम आई के थिंक हो जाता जीरो है। डे इज बेसिकली दैट टर्म ना कि कोई जब नया सॉफ्टवेयर आता है तो पहले दिन पे कौन उसके अंदर का
नहीं नहीं नहीं, वो निकालेगा? नहीं, zero day means that हम्म। it's a zero day exploit, as in it is हम्म। not publicly known that this is a यस। vulnerability, यस। and नॉट पैच डेट। it's not patched, हाँ। and वो पूरा exploit होने का chance है, हम्म। या मतलब वो hack होने का chance है, तो there are there are situations in the past जहाँ पे किसी ने पावर ग्रिड के कंप्यूटर में हाँ। SCADA सिस्टम में वायरस डाल दिया, यस। स्टक्सनेट एंड ऑल दीज आर यस। पॉपुलर एग्जांपल्स जब हुआ है पहले। तो अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं, तो इट मे बी पॉसिबल टू कॉम्प्रोमाइज पब्लिक सेफ्टी सिस्टम विच आर टोटली ऑटोमेटेड। करेक्ट। तो यू नीड टू हैव अ मैनुअल ओवरराइड। हाँ, you need to have manual override, and like you said कि इंडिया में trust is a factor. हाँ। तो when you have person over there, then you have more accountability in that system, हम्म। because person will think that if this gets messed up, मेरे पे and जिम्मेदारी है। मेरे पे आएगा। हम्म। And when I said for the flight also, many times the for airplane crashes, the pilots are often blamed for many things. हम्म। Maybe they have done it, maybe they have not done it, but they will find a way to turn it on them कि it is your fault. फिंगर पॉइंटिंग तो कहीं ना कहीं पे तो करना ही है। हाँ, हाँ। तो जब वो फिंगर पॉइंटिंग वाला फैसिलिटी है, हम्म। एसेंशियली इट्स अ फैसिलिटी, आई थिंक ऑफ राइट। इट एज अ फैसिलिटी, वो फैसिलिटी है तो वो हम्म। रख रहे। इट्स नॉट नेसेसरी, बट पेइंग somebody one salary for loco pilot per month for government is nothing. मच मोर चीपर देन टेकिंग द लायबिलिटी द Yes, वे। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ये तो हम मूविंग चीज़ों की बात कर रहे हैं। समटाइम्स आई फील देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन इंडिया ना, विच आर मैन पावर इश्यूज। hmm. फॉर एग्जांपल, मैं ये मानता हूँ कि दिस इज माय पर्सनल बिलीफ कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग एंड नॉट फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स हैज इंक्रीज्ड फॉर 2-3 रीजंस। लाइक गाड़ियाँ बढ़ गई लॉकडाउन के टाइम पे। आई थिंक इवन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हैज reduced patience that is leading to these things. बट आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज कि ट्रैफिक पुलिस बहुत कम है कंपेयर टू हाउ मेनी व्हीकल्स आर I देयर। would say इंडिया में पुलिस ही बहुत कम है। हाँ, पुलिस तो है ही। मैं यहाँ पे एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन का Hmm. लेके बात Hmm. कर रहा हूँ। एंड आई थिंक Hmm. दीज सॉल्यूशंस कैन बी इजीली टेकन केयर ऑफ बाय एआई। तो ऐसे ही जो हमारे बाकी चीजें, फॉर एग्जांपल यूटिलिटीज, वाटर सप्लाई हो गया। अभी अभी हर साल क्या है, कितना भी पानी हो, अभी तो 40% ही पानी बाकी, 30% बाकी पे आ जाता है। इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स आर इशू की जहाँ पे प्रोडक्शन इज मोर देन व्हाट वी नीड, बट द ग्रिड इज नॉट एट पीक। डू यू थिंक एआई इन इंडिया स्पेसिफिकली विद दिस इश्यूज कैन प्रोवाइड अ सोल्यूशन, और सरकार को कुछ करना चाहिए, या फिर इट्स बेटर टू गो विद द ट्रेडिशनल वेज? आई थिंक सोल्यूशन हो सकता है। हम्म। अल्टीमेटली द क्वेश्चन इज कि वेदर वी विल बी रेडी टू एक्सेप्ट इट। हम्म। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एआई विल टेल यू, रिकमेंडेशन विल गिव यू कि बॉस, इफ यू वांट टू लास्ट विद दिस वाटर बाय द एंड ऑफ द ईयर एंड देयर इज नो मानसून, हम्म। आई एम गोइंग टू कट योर वाटर सप्लाई। इन मे बी जून जुलाई ओनली। हाँ, आर यू रेडी टू एक्सेप्ट कि आई विल नॉट हैव वाटर? Then it becomes human questions, emotional questions, हाँ, political questions. हाँ, तो आर पीपल रेडी टू एक्सेप्ट रिकमेंडेशंस ऑफ एआई? दे विल से नहीं, मैं एआई से बहुत स्मार्ट हूँ, मैं मेरे मर्जी मैं से मैं करूंगा। मैं मेरी मर्जी से कर लूंगा। Okay. तो लाइक देयर इज अ एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन वेयर वी हैव टू हम्म। थिंक कि क्या अगर हम बोलेंगे कि एआई का ऑब्जेक्टिव है कि हमको वाटर अवेलेबल कराना है एट ऑल टाइम्स, हम्म। तो बट अगर जो रिसोर्स है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो अवेलेबल ही बहुत कम है, हम्म। तो अगर आप उसको बोलोगे डिवाइड करने के लिए, एंड उसको जो स्ट्रैटेजी उसको प्रोग्राम किया है कि आप हम्म। ऐसे ऐसे हैंडल करो, ऐसे ऐसे वेदर पैटर्न के हिसाब से, प्रेडिक्शन के हिसाब से आप हम्म। वाटर मैनेजमेंट करो, कि विल पीपल बी रेडी टू एक्सेप्ट इट? हम्म। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट डिविएट्स टू मच फ्रॉम द रेगुलर पैटर्न्स हाउ पीपल आर यूज्ड टू गेटिंग द वाटर। हम्म। नहीं तो क्या होगा कि सडनली समर के बीच में वाटर कट हो गया, तो हम्म। people will start coming on the streets. Correct. They will say पानी नहीं है, तुम हम्म। क्या कर रहे हो? हमको दिख रहा है वहां पानी है, तुम नहीं छोड़ रहे हो। हम्म। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, इट्स नॉट प्योरली बी आंसर्ड कैन एआई बी यूज्ड और नॉट। इट्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट टू AI आंसर। definitely can be used. The question is कि whether people will accept it. एक्सेप्ट इट। यस। यस। Because अगर आप देखोगे टर्मिनेटर सीरीज, तो और जो वो डर मूवीज है, लगता तो वो तो देख के पहले एआई के नाम से डर गए, है। मतलब दैट्स द पब्लिक हैज बीन स्केर्ड। हम्म। नाउ देन they are very very valid to be scared about हम्म। what they are saying, but I'm saying at the end of the day, will it make sense for these people to accept कि कोई नॉन लिविंग चीज मुझे कुछ बता रहा है हम्म। एंड मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ? हम्म।
आई थिंक इट विल हैपन स्टेप बाय स्टेप। जैसे कार्स में एक एक्सेप्टेंस आएगा उसको कंट्रोल देने का, फिर मे बी सिस्टम्स में आएगा, और धीरे धीरे मे बी इन अ डेकेड और सो पीपल विल बी विलिंग, एंड इवन पीपल हु आर वर्किंग राइट नाउ, जैसे फॉर एग्जांपल इन द क्रिएटिव इंडस्ट्री अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन ऑफलोडेड टू एआई ऑलरेडी। हाँ, तो वो ट्रस्ट आ गया इंडस्ट्री में कि पर ये। एक डिफरेंस है, हाँ। ये सारी चीज़ों में डिफरेंस है हाँ। कि एआई इज़ प्रोवाइडिंग अ सर्विस एक हम्म। जगह पे, व्हेreas एआई इज़ डिनाइंग यू सर्विस। हाँ, वो बिग डिफरेंस। यस, 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 यस। क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हो, आप कोई गलत काम कर रहे हो तो आपको Making फाइन life मार रहा easier है, versus making your life more डिफिकल्ट। difficult. Maybe दिस it might be good for you, but it इट is. माइट बी गुड हाँ। फॉर यू, बट द थिंग इज़ कि एट दैट पॉइंट क्या है ना कि अभी कैसा है कि यू हैव द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू से कि हम्म। नहीं, अगर हम कुछ मिस्टेक करेंगे, गवर्नमेंट मेक्स मिस्टेक विद वाटर हम्म। मैनेजमेंट, कुछ होता है तो देन इन नेक्स्ट इलेक्शन पीपल कैन वोट देम आउट Out. एंड से Yes. कि नहीं, वी डोंट वांट यू, Hmm. तुमने पानी के साथ बहुत गफला किया, Hmm. जो भी यू डिड अ मिस्टेक, सो यू आर आउट नाउ। बट This is एआई the. आ गया तो हाँ. देयर इज नोबडी टू ब्लेम। This is the issue with civics and implementation also. If the government becomes very strict on implementing fines and like taking action on people who are like throwing garbage or not following traffic rules, क्योंकि वो स्केल इतने बड़े पे चला जाएगा ना, पीपल विल बी लाइक हम आई वी विल वोट यू आउट बिकॉज आप हमको ये नहीं बता सकते, वी आर हैप्पी विद व्हाट वी एग्जैक्टली, आर, बिकॉज एंड देन नो वो पार्टी इज गोइंग टू ह्यूमन टेक दैट नेचर की रिस्क। ईगो पे आता है। ईगो पे आता है। Now, आज के before this conversation, I had a few questions in mind. After this conversation, I have a beginning, like a starting point from where to think now. अच्छा, Especially when it comes to, क्योंकि मेरे को देखो, आई एम नॉट अ प्रोग्रामर, आई एम नॉट अ कोडर, आई एम a मैकेनिकल इंजीनियर। हाँ, मैंने फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट करके छोड़ दिया। हाँ, ठीक है। सो फॉर मी माई अंडरस्टैंडिंग इज सरफेस लेवल, बहुत सुपरफिशियल है, मेरे को इन डिटेल कैसे चलता है पता नहीं। सो फॉर मी द थिंकिंग इज मोर ऑन broader reaction, or you could say the effect of these things. हम्म, And I think I've got a good clarity on that, how I basically I can predict better हम्म, कि कैसे चीजें हो सकती है। हम्म। Paji, what message would you like to give young people or anybody who is in developing and coding, who wants to build something in this field? I think the best thing that you can do is to just do whatever you want. That is, just do it. Then you start questioning that how it is to be done. If you want to build some technology, if you want to build whatever it is that you want to build, any sensor you want to build, just say I want to build it, and then you go start finding ki how it is to be done. What is the basic 1 2 3 steps? Go use first principle thinking to understand what is the process, and then go from there. And again, if you want any advice, you want to reach out and understand, you can reach out to my Twitter, and I will be more than happy to mentor so many other people. Like my understanding is that people inherently are curious, and we are on the growth story. We are having a good success story, I think, and we will have even better one in the future. Okay. And youth is very important, because once they understand what these things are, then the next generation will become better. Yes. Today, if youth is understanding how to use technology, how to use these different things, then tomorrow maybe they are not into technology, or they are not a software engineer, but they become a lawyer, they become a judge, they become a politician. When they are young, if they understand these things, then they will be more ready to accept and understand कि AI होता क्या है, या फिर advanced technology concepts क्या होता है. नहीं तो we will have a system where today, let's say, judiciary or other bigger bodies which are important in our system, they don't understand. So we need to develop an understanding कि ये होता क्या है. I mean, even if you don't understand कि what is it, ये क्या है, computer क्या होता है, what can technology do, वो समझने की कोशिश करो. No, our country was hesitant to using computers when they were first introduced. बाद में जब चीजें समझी तो we became the IT, as we say, the IT export giant or Yes. whatever. And I think AI would be the same thing. एक फाउंडेशन बन जाएगा अगर अंडरस्टैंडिंग इस अभी ठीक से होती है तो, and that will help in future. Thank you so much, Vaji, for coming on our podcast and sharing all your valuable insights. My pleasure. My pleasure. Thank you so much again. Thank you. Thank you.